couple of seconds. Yes, very good morning to all of you. So friends, we'll continue our discussion on the very interesting topic, I would say, and that is the accounts and records. I think even when you were discussing the other topic, there would have been some discussion around this topic. But जब हम accounts और records की बात करते हैं, particularly in GST, तो पहला reaction आपका ये आएगा, correct? But still, I think this is a very critical and important topic. Why? Because not only the taxpayer need to maintain this record, but at the same time, more than the taxpayer, it is the tax authorities who are interested in checking these records. And that's the reason I think as a professional, we don't have a choice but to become interested even in this topic. So I think now your tone of answer would have changed, and now you will say that मुझे बहुत interested. So let us understand which are these provisions. So friends, on a macro level basis, when we talk about accounts and records, because we are dealing with the supply of goods or services or both, the accounts and records are also dealing with the same, correct? In certain cases, naturally you would be aware that even when a developer is supplying a under construction unit, he is supposed to pay GST, and accordingly I would say that even a works contractor is required to maintain these records, and that is also mentioned in the GST rules. So friends, when we talk about supply, naturally as a taxpayer you will say whatever I am supplying, I will maintain the records related to that supply. But will that be enough? The answer is certainly no. Not only you are expected to maintain the details of the outward supply, but also all the purchases of procurement, the stock transfer, the job work activity which you are doing, or you are sending goods for job work purposes, if you are carrying out the activity of import, export, and even reverse charge, and certainly related the relevant document to all these activities. So that at a macro level. But let us also understand at a micro level, correct, how these records are maintained. So typically, you would be aware that a supplier would be either a manufacturer, he could be a trader, or he can be a service provider. So the government has also specified specific records for these kind of people. And where they are specified, we are going to discuss that in the next couple of slides. When we talk about records, why there is importance given to this particular topic and why we are covering this topic in this session is because all of you are aware that in the earlier era, typically it was referred, the earlier era was referred as the Inspector Raj. I'm not talking about excise, but excise way back in 1990s. Because in those days, the taxpayer was supposed, or whenever he was having a factory, there was a physically inspector which used to be present outside his factory gate, and he used to check each and every goods, each and every lorry which is going outside. And only after he signs that document, only after he is signing that document, the goods were allowed to leave the premises. And that was said to be Inspector Raj. And obviously from Inspector Raj, we have moved on to the self-assessment era. Now, can any one of you tell me which is the section which talks about self-assessment under GST? Can anybody mention about that section? Because we have already covered that section. Which is the section we talks about or says that GST is to be self-assessed? First, have we covered that section? Yes or no? Perfect, Vishnu, it is section 59. Correct. So GST is a self-assessment tax and it's a self-assessment regime. And accordingly, the entire responsibility, I would say, of maintaining the record falls on the taxpayer. He is supposed to maintain the records related to all the supplies which he is making, and similarly all the procurement. Additionally, the details of tax payment and everything, reverse charge, etc., he is expected to maintain. And because there is a substantial responsibility, I would say there are multiple obligations which the taxpayer is having. And if he wants to fulfill those obligations, he has only one solution, that is he needs to maintain the record. Now, naturally, the first question which will come to your mind would be, how should I maintain the record? Where is the guidance provided? What the law is saying about the same? So friends, let us first have an overview of all these provisions, and then we will get into the nitty-gritties or minute points or minute details and why these records are required. The first and foremost point which we need to understand is that Section 35 of GST Act will guide us
about the accounts and records. So it will tell us which accounts and records have to be maintained, how they are need to be maintained would be covered in detail by Rule 56. Additionally, Section 36 is there under the GST Act, which talks about period of retention. For how many months or how many years you are expected to maintain the records is specified in Section 36. Then there are other aspects also. For example, if you are maintaining the records electronically, then what about the passwords? Otherwise, you will say that take this data backup, but I will not give you the password. Then what is the use of the data for the government officer? So all these details are specified in Rule 57. And finally, even certain records are to be maintained. And I think the forms are ENR 1 and ENR 2, etc. by the warehouse operator, godown operator, and transporter. And that is specified in Rule 58. And we are going to have a discussion around all these rules. But first, let us understand how many subclauses are there under Section 35 and subsequently under Rule 56. When we talk about Section 35, which deals with accounts and records, it's, I would say, a very brief section because it has just 6 subclauses. How many? 6. So only 6 subclauses है. यहाँ पर अगर हम देखते हैं, thank you for the specific request that we need to continue in Hindi. तो जब हम Section 35 देखते हैं, तो you'll be able to understand there are 6 subclauses, यानी 6 subclauses है. अगर आप रूल 56 देखोगे, वहां पर 18 सब क्लॉजेस है, बराबर है. तो अगर आप देखेंगे सेक्शन 35, इट इज वेरी एकदम सिंपल 6 सब क्लॉज वाला सेक्शन है. रूल 56 में 18 सब क्लॉजेस है, करेक्ट. तो पहले हम सेक्शन 35 का ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं. तो पहले ये सेक्शन क्या कहता है, सब क्लॉज 1, व्हाट इट इज सेइंग, मेंटेन द रिकॉर्ड्स एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस. फर्स्ट, यानी जो भी आपके रिकॉर्ड से आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा. अभी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, कैन एनीबॉडी टेल मी कि अगर आपका पुणे में एक हेड ऑफिस है एंड आपका सातारा में एक ब्रांच है, नागपुर में एक ब्रांच है, बॉम्बे में एक है, कोल्हापुर में, मल्टीपल लोकेशन है, तो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा हुआ? वो लोकेशन जहां आपका हेड ऑफिस है, या कौन सा हुआ? ये स्पेसिफिकली है कि आपका हेड ऑफिस या आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ऐसा कुछ है लॉ में? आपने कहीं पर पढ़ा अभी तक? Answer is certainly no. Typically it is head office, बराबर है. Typically it is head office, but लिखा नहीं है कि नहीं आपको जहाँ हेड ऑफिस है वहीं पर है. जनरली नेचुरली जहाँ हेड ऑफिस है, सीईओ सीएफओ जहाँ बैठेंगे वहीं पर आप टिपिकली उसको डिक्लेयर करेंगे एज अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बिकॉज जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है. दैट इज मेंशन अंडर सब क्लॉज 1. यहाँ पर रिकॉर्ड्स के बारे में जब हम बात करते हैं सेक्शन 35 में, वहां पर अलग अलग स्पेसिफिकली चीजें लिखी गई है, जैसे प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, इनवर्ड आउटवर्ड डिटेल. लेकिन कुछ और चीजें हैं, जैसा हम बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो सेक्शन 35 सब क्लॉज 1 में उसके बारे में लिखा ही नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डिटेल हमको मेंटेन नहीं करनी है? आंसर इज नो, बिकॉज उसके बारे में स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे नेक्स्ट रूल, दैट इज रूल 56 सब क्लॉज 1, वहां लिखा गया है कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट और रिवर्स चार्ज की डिटेल मेंटेन करनी है. तो आपको रूल भी पढ़ना है और सेक्शन भी पढ़ना है, बराबर है. देन सब क्लॉज 2. सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि भैया अगर आप वेयर हाउस कीपर हो, गोडाउन वाले हो, ट्रांसपोर्टर हो, तो आपको ना कंसाइनर, कंसाइनी एंड अदर डिटेल्स मेंटेन करनी है. कंसाइनर यानी कौन कि जो गुड्स भेज रहा है, कंसाइनी यानी कौन जिसके पास गुड्स जा रहे हैं, बराबर है. एंड अदर डिटेल्स यानी कि कौन से गुड्स है, क्या नहीं है, बराबर, उसका वैल्यू क्या है, ये डिटेल आपको मेंटेन करनी पड़ेगी. और क्यों मेंटेन करनी पड़ेगी? बिकॉज अगर कई रास्ते में कल जीएसटी ऑफिसर ने कोई ट्रक को जब्त कर लिया, बराबर, उसको पकड़ा और बोला कि भैया गुड्स क्या है उसमें, तो बोला सर मुझे पता ही नहीं, किसी ने बोला तो यहाँ से यहाँ लेके जाओ. देन प्रैक्टिकली इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द जीएसटी ऑफिसर टू चेक और आइडेंटिफाई इफ देयर इज अ केस ऑफ टैक्स इवेजन. सिमिलरली कि गोडाउन में माल पड़ा है 10 करोड़ का, लेकिन जब वहां पर रेड होता है, जीएसटी ऑफिसर वहां जाते हैं तो बोलते हैं सर पता नहीं किसने, एक जन ने रखा था, हमको रेड दिया था तो माल रख रहे. बट सर्टनली दैट इज नॉट द आंसर यू आर एक्सपेक्टेड टू गिव. जो भी वेयर हाउस कीपर है, गोडाउन कीपर है, ट्रांसपोर्टर, उनको अप्रोप्रिएट डिटेल्स रखने पड़ते हैं सो दैट जीएसटी ऑफिसर फिर वहां से अप्रोप्रिएट कंसाइनर यानी कि जिसने माल निकाला है उसने जीएसटी पे किया है कि नहीं, जो कंसाइनी है उसके पास बराबर माल जाने वाला है कि नहीं, कौन है वो कंसाइनी, उसके बारे में चेक कर सकते हैं, उनको पता चल सकता है. दैट द रीजन वेयर हाउस कीपर, गोडाउन कीपर और ट्रांसपोर्टर ने भी अप्रोप्रिएट डिटेल रखने चाहिए. देन सब क्लॉज 3 and 4 टॉक्स अबाउट नोटिफिकेशन. कभी कभी क्या होता है कि कुछ एडिशनल रिकॉर्ड भी गवर्नमेंट आपको बता सकता है कि ये मेंटेन करने हैं आपको, एंड दैट इज स्पेसिफाइड अंडर सब क्लॉज 4. तो यहाँ पर कमिश्नर को पावर दिया गया है कि आप ये नोटिफाई करो कि ये एडिशनल डॉक्यूमेंट रखने हैं. देन दोज एडिशनल डॉक्यूमेंट वुड बी मेंटेन बाय दोज पीपल. देन कहीं कभी प्रॉब्लम आ जाते हैं कुछ पर्टिकुलर बिजनेस में,
बराबर है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, मुरमुरा है, पोहा है, उसके रिलेटेड, बिकॉज स्टॉक इतना ज्यादा हो जाता है, बिकॉज वेट कम है, तो छोटा यानी कि केजी या टन का अगर आप माल देखोगे तो क्वांटिटी वुड बी टू हेवी टू मेंटेन द नंबर ऑफ क्वांटिटी, डिटेल्स वगैरह काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकता है कि भाई आपको ऐसा नहीं तो आप ऐसे मेंटेन करो रिकॉर्ड, समथिंग लाइक दैट, बराबर है। तो गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकता है वहां पर कि अनदर मैनर जो प्रिस्क्राइब होगा, तो कमिश्नर कैन प्रिस्क्राइब दैट। देन सब क्लॉज 5 जो है, बराबर है, सब क्लॉज 5 टॉक्स अबाउट ऑडिट। तो आप मुझे बताइए फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जीएसटी ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं है? आप में से किसको पता है? एनीबडी नोज जीएसटी ऑडिट 2021 के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है अभी? हु कैन शेयर द आंसर? आप में से कह रहे हैं यस, नो, नॉट स्पेसिफाइड, नहीं, यानी कि यस और नो दोनों आंसर है, बराबर है। इसका रीजन क्या है? बिकॉज फाइनेंस जो एक्ट है, जो अपना 2021 जो फाइनेंस बिल है अभी, ये जब एक्ट बन जाएगा, जब सेंटर और स्टेट दोनों के नोटिफिकेशन आएंगे, इट विल बी नोटिफाइड, तब ये इफेक्टिव होगा। तो अभी क्वेश्चन क्या है कि सब क्लॉज 5 तो डिलीट होने वाला है, बराबर है, इट वुड बी एडिटेड, बट प्रैक्टिकली 2021 में फिर ये सब क्लॉज 5 एप्लीकेबल होगा कि नहीं? 21-22 में प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है, 2021 का क्या होगा? तो इसके लिए राइट नाउ देयर इज अ कंफ्यूजन एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जीएसटी काउंसिल विल क्लैरिफाई इट सुटेबली। जहां तक वी नो एज अ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, I think ICA has already made a certain representation saying that 2021 के लिए जीएसटी ऑडिट कंटिन्यू करना चाहिए। हो सकता है 21-22 के लिए आप डिलीट कर दे। ऑब्वियसली पहला रिकमेंडेशन ICA का यही था कि दैट द ऑडिट शुड कंटिन्यू, बट बाद में कहा गया है कि अगर नहीं कंटिन्यू करने, देन दीज आर अल्टरनेट 1 to 3 मैकेनिज्म, जहां पर 2021 के लिए कंटिन्यू करिए, मे बी 21-22 के लिए नहीं, ठीक है। चलो उसके बाद यानी कि सेक्शन 35 आपने देखा, 5 सब क्लॉज हमने पढ़े, अभी 6 सब क्लॉज। ये 6 सब क्लॉज बहुत बार मिस हो जाता है, और हमने देखा काफी सारे प्रोफेशनल्स को, कंपनीज को, टैक्सपेयर को ये सब क्लॉज के बारे में पता ही नहीं है, एंड इट्स वेरी डेंजरस सब क्लॉज। इट टॉक्स अबाउट अ सिनेरियो कि अगर आपने, इफ यू फेल टू अकाउंट फॉर सर्टेन गुड्स, आपने रिकॉर्ड रखे नहीं कुछ गुड्स के, बराबर है, सेक्शन 17(5) सब क्लॉज टॉक्स अबाउट गुड्स विच आर लॉस्ट, एंड आप कह रहे थे पता नहीं गुड्स लॉस्ट हो गए, बट पता ही नहीं मुझे कुछ भी उसके बारे में। तो गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है, नहीं पता है ना, नो प्रॉब्लम, हम आपको बता देंगे उसका पता कहाँ पर है, बिकॉज गवर्नमेंट आपको बोलेगा इफ यू आर फेलिंग टू अकाउंट फॉर दिस गुड्स यू आर एक्सपेक्टेड टू पे जीएसटी ऑन दिस गुड्स, बराबर है, दैट इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35 सब क्लॉज 6। तो टू सम एक्सटेंट आई वुड से दिस इज अ डेंजरस सेक्शन, बिकॉज अगर इफ यू डोंट हैव रिकॉर्ड रिलेटेड टू योर गुड्स विच आर डिस्ट्रॉयड, लॉस्ट वगैरह, या आप बोलोगे फैक्ट्री में आया कोई ऑफिसर, आप कहोगे सर पता नहीं शायद वो गुम गए गुड्स, तो गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है, अगर गुम गए तो आपको जीएसटी की उसके ऊपर पे करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट सेक्शन 35 सब प्लस 6 इज ऑल अबाउट। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट बट एट अ सेपरेट जंक्चर। उसके बाद आता है सेक्शन 36। सेक्शन 36 में कोई सब क्लॉज नहीं है, बराबर, वहां पर एक ही सब क्लॉज है आई वुड से, एंड दैट इज दैट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, एंड एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को क्या बोला गया है कि भैया तुम मेंटेन करो रिकॉर्ड्स को। मेंटेन कितने साल के लिए करना है? तो उन्होंने ईयर्स की जगह मंथ्स मेंशन किए हैं, तो 72 मंथ्स। तो कोई बता सकता है 72 मंथ्स यानी कितने ईयर्स होंगे इफेक्टिवली? How many years it would be? Perfect, 6 साल। Anybody can tell me how many for how many years the records were to be maintained? पहले एक्साइज और सर्विस टैक्स में कितने साल के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते थे? किसी को याद है? किसी को पता है? इट वाज फॉर 5 years अर्लियर, अभी उसको जीएसटी में 6 साल कर दिया, सर्विस टैक्स में वो 5 साल था। अभी हम देखेंगे जब जीएसटी की हम बात करते हैं, इट इज व्हाट 72 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। तो एनुअल रिटर्न जो है 2021 का, बराबर है, चलो 19-20 का लेते हैं। इन 19-20 के एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या थी, कोई बता सकता है? 19-20 के एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या थी? फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर 2020, 31 मार्च। चलो अभी मल्टीपल आंसर आ रहे हैं तो मैं और इजी कर देता हूँ। 2021 की क्या है? 20-21 की, ये साल की 20-21 की 31 दिसंबर, करेक्ट। तो अगर 20-21 के रिकॉर्ड अगर आपको मेंटेन करने हैं तो कब तक मेंटेन करने पड़ेंगे, कोई बता सकता है? 31 दिसंबर से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 2021 से, तो कब तक मेंटेन करोगे आप?
2027 तक, बराबर है। तो 2021 से लेके 2027 तक यानी इफेक्टिवली कितना हो रहा है आपका, इफेक्टिवली हाउ मेनी ईयर्स यू आर मेंटेन द रिकॉर्ड। आपने 2021 में तो मेंटेन कर लिए, बराबर है, वो भी साल मत भूलो आप, वो साल भी मेंटेन कर लिए। फिर 2021 के बाद आप और 9 महीना, बिकॉज एनुअल रिटर्न का वो टाइम है, बराबर है, वो दूसरा साल आप बोल सकते हो। उसके बाद 6 महीना, 6 साल, बराबर है। तो 7.5 पौने 8 साल, तो नियरली 8 ईयर्स आता है, बराबर है। तो इसके लिए काफी सारे लोगों ने जब हम क्वेश्चन पूछे तो 8 साल की बात की थी, इसके लिए वो 8 ईयर्स आता है इफेक्टिवली। एंड दैट्स हाउ फ्रेंड्स, जो पीरियड जो है ये मेंटेन करने का, ये बहुत ही लॉन्ग किया गया है। अभी रिकॉर्ड्स को मेंटेन कैसे करना है, इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं क्या, आंसर इज यस, बट उसके बारे में सचिन जी हम थोड़ा आगे बात करेंगे। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा रहेगा कि भैया कोई मैटर है आपका लिटिगेशन में चला जाता है, फेक इनवॉइसिंग का कोई केस है, कोई टैक्स पेयर को अरेस्ट हुआ है, किसी ने क्रेडिट ज्यादा ले लिया है, कोई ट्रांसफर का आपका लिटिगेशन चल रहा है। आप सबको पता है सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जाते जाते 20-25 साल हो जाएंगे। यानी अगर है तो प्रीतम और चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर हमने केस फाइल किया तो हो सकता है मेरी जो डॉटर या जो मेरे सन है वो सुप्रीम कोर्ट में अपियर कर, अगर वो लॉयर बनते हैं तो, और वो कैपेबल बनते हैं तो, बराबर है। यानी कि मेरे जिंदगी में तो कभी वो चांस आएगा नहीं अगर हमने कोई केस फाइल किया तो, बिकॉज वो तो 20-25 साल तो मिनिमम लगते हैं, करेक्ट। तो हो सकता है कि अगर आपने फाइल किया केस तो आपके बच्चे वो मैटर हैंडल करे, लिटरली स्पीकिंग। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी बोला है कि रिकॉर्ड भी आपको वैसे मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर कोई मैटर लिटिगेशन में है, यू विल हैव टू मेंटेन इट अंटिल 1 ईयर आफ्टर द फाइनल डिस्पोजल, करेक्ट, मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट। तो यहाँ पर एक थोड़ा ये हो गया, मैं आपको जस्ट ये पीपीटी में ना, एक सेकंड, मुझे लग रहा है कुछ एरर है यहाँ पर, जस्ट 1 सेकंड। तो वहां पर आपको ना सिर्फ 1 साल बाद में, यानी कि 1 साल आफ्टर द फाइनल डिस्पोजल आपको मेंटेन करना है। यानी कि अगर आपका 25 साल चला तो इफेक्टिवली आपको 26 साल तक उसको मेंटेन करना है, आप ऐसा कह सकते हो। तो नाउ आई थिंक इट इज विजिबल क्लियरली, परफेक्ट। तो इफेक्टिवली आप देखो, अगर 25 साल मैटर चला तो यहाँ तक, यानी कि कहाँ तक मैटर खींच सकता है, यानी कि आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉनिक होगा क्या होगा, हम थोड़ा आगे उसके बारे में बात करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे कि देयर आर सर्टेन रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। तो यहाँ पर जो आपको नेक्स्ट गाइडेंस आता है अभी मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड का, वो आता है रूल्स से, बराबर। बिकॉज अभी हमने सेक्शन 35 और हमने सेक्शन 36 पढ़ा। 35 में कहा गया है कि 6 सब क्लॉजेस हैं, यू आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन द रिकॉर्ड। उसके बाद आता है सेक्शन 36 जो बोलता है कि आपको 6 साल 72 मंथ के लिए रखना है आफ्टर एनुअल रिटर्न के बाद में। उसके बाद आता है रूल 56 और ग्रेन्युअल डिटेल में जाता है। इसमें 18 सब क्लॉजेस है। कितने सब क्लॉजेस है? 18 सब क्लॉजेस है। तो पहला सब क्लॉज क्या कहता है कि भैया आपको रिकॉर्ड तो मेंटेन करने हैं, बराबर है, लेकिन दे शुड बी इन ट्रू एंड करेक्ट फॉर्म। अभी ट्रू एंड करेक्ट में एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप सबको पता रहेगा, टिपिकली जब हम ऑडिट करते हैं तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ट्रू एंड करेक्ट कहते हैं क्या हम उसको? ऑडिट जब हम करते हैं तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? जब हम ऑडिट करते हैं तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होने चाहिए ऑडिट में? ट्रू एंड फेयर, परफेक्ट, बराबर है विशाल? सो इट इज यस विष्णु, सुयश, यू आर राइट, इट इज ट्रू एंड फेयर। बट जीएसटी रिकॉर्ड्स में कि जब हम बात करते हैं जीएसटी अकाउंट्स की, यहाँ ट्रू एंड फेयर नहीं है, बराबर है। सो जीएसटी की जब बात करेंगे यहाँ पर एवरीथिंग इज टू बी ट्रू एंड करेक्ट, एकदम परफेक्ट, बराबर है। तो वहां आपका फेयरनेस नहीं चलेगा। यू नीड टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स इन अ ट्रू एंड करेक्ट फॉर्म। उसके बाद में जैसा हमने कहा सेक्शन 35 में सिर्फ बोला गया है कि मैन्युफैक्चर रिलेटेड आप डेटा मेंटेन करो, इनपुट टैक्स का करो, स्टॉक्स का करो, लेकिन उसके वहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं की गई है। तो रूल में स्पेसिफिकली लिखा गया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी आपको डिटेल मेंटेन करने हैं, बराबर है। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे, इवन आपका रिवर्स चार्ज भी वहां पर लिखा गया है। देन बात आती है रूल 56 सब क्लॉज 2 की। तो वहां पर आपको स्टॉक के डिटेल रखने हैं। वो स्टॉक के डिटेल क्या रखने हैं, कैसे रखने हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा, बराबर। लेकिन बेसिक पॉइंट क्या है कि यू आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन द स्टॉक रिकॉर्ड। बट प्लीज नोट, ये जो रूल है स्टॉक रिकॉर्ड का, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू अ कंपोजिशन टैक्स पेयर, बिकॉज वो होलसेल में टैक्स पे करता है, ऐसा आप बोल सकते हो, बराबर है, टर्नओवर पे। देन एडवांसेस की जब हम बात करते हैं, एडवांसेस के बारे में आप सबको पता है कि जो टैक्स है वो पेएबल है इन केस ऑफ सर्विसेज व्हेन यू आर रिसीविंग एडवांस। तो वहां पर गवर्नमेंट ने बोला जो भी आपको एडवांस मिल रहा है वो आपको डिटेल उसके मेंटेन करने पड़ेंगे, दैट इज मेंशन अंडर रूल 56 सब क्लॉज 3।
उसके बाद आता है सब क्लॉज 4। सब क्लॉज 4 क्या कहता है? बेसिकली सब क्लॉज 4 टॉक्स अबाउट टैक्स पेएबल, कि जो भी आपका टैक्स पेएबल है, बराबर है, जो भी आपका टैक्स पेएबल है, दैट यू विल हैव टू अप्रोप्रिएटली यू विल हैव टू कैप्चर दोज डिटेल्स। देन सब क्लॉज 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब क्लॉज 5 टॉक्स अबाउट द फैक्ट कि जितना भी आप परचेस करोगे और जिससे भी परचेस करोगे उसके बारे में आपको डिटेल मेंटेन करनी है। और प्लीज नोट करिएगा ये जो डिटेल मेंटेन करनी है, ये इवन एक कंपोजिशन प्लेयर को भी मेंटेन करनी है। वो ये नहीं बोल सकता कि सर मैंने माल किससे परचेस किया मैं बताऊंगा नहीं। नो, दैट इज नॉट अलाउड। इवन अ कंपोजिशन टैक्स पेयर इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन दिस डिटेल्स। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है सब क्लॉज जो है दैट इज 6। इट टॉक्स अबाउट द फैक्ट कि अगर इफ द गुड्स आर फाउंड एट सम अदर लोकेशन, बराबर, आपके गुड्स कहीं और पे मिले गए और आपने बताया नहीं, कभी रिकॉर्ड डिक्लेयर ही नहीं किए थे, तो हो सकता है डायरेक्टर के घर पे मिले। आपके डायरेक्टर के घर पे आप जितना भी माल है, गुड्स वगैरह जो रखा था वो काफी सारा है ना, कि 1-2 करोड़ का माल वहां पर मिला उसके घर पे। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया अगर दूसरे आपके डायरेक्टर पे या कहीं पर भी और जगह मिलता है, बराबर है, गुड्स अगर मिलते हैं, देन प्रैक्टिकली यू विल हैव टू एंश्योर that you pay tax on that, so that the government is saying कि ऐसी कोई जगह नहीं होनी चाहिए जहां पर आप गुड्स रख रहे हो, बराबर है, ऐसी कोई जगह नहीं होनी चाहिए जहां पर गुड्स आप रख रहे हो। यहाँ पर किसी ने पूछा है कि when you are selling the goods तो B2B के केस में आपको डिटेल रखनी है, लेकिन जब परचेस कर रहे हो आप, बराबर है, परचेस के केस में वहां पर गवर्नमेंट ने कुछ लिखा नहीं है कि B2B या B2C। गवर्नमेंट ने बोला है कि जब परचेस कर रहे हो आपको पता होना चाहिए आपने माल किससे परचेस किया है, अदरवाइज क्या होगा, फेक इनवॉइसिंग के ट्रांजैक्शन कभी भी पता ही नहीं चलेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला परचेज जब आप कर रहे हो आपको पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए मैंने किससे परचेज किया। और ये तो कॉमन भी अगर आप देखेंगे, कॉमन सेंस भी अगर हम अप्लाई करेंगे, मैं मुझे पता होता है ना मैं किससे परचेज कर रहा हूँ, क्या रेट से परचेज कर रहा हूँ, उसको मुझे पेमेंट करना पड़ता है कैश में या बैंक में, जो भी रहेगा। सो ऑल दोस डिटेल्स आई नीड टू मेंटेन। तो परचेज फ्रॉम जब करते हैं तो मुझे सब डिटेल रखनी है। लेकिन व्हेन आई एम सेलिंग टू समवन, अगर मैं बिग बाजार में जाता हूँ, दिन भर में हजारों ट्रांजैक्शन होते हैं बिग बाजार में, तो वो थोड़ी मेंटेन कर सकता है हर किसी का रिकॉर्ड। तो वहां पर बोला गया कि व्हेन यू आर सेलिंग मेंटेन द रिकॉर्ड विद रिस्पेक्ट टू B2B ट्रांजैक्शन। ऑब्वियसली अगर कहीं पर लॉ में बोला गया है कि B2C का भी रिकॉर्ड रखना है तो वो भी रखना पड़ेगा, बट टिपिकली आपको B2B का तो रखना ही है। उसके बाद आती है स्टोरेज की, कि अगर आपने कहीं और जगह पर, हो सकता है कि आपके गोडाउन है बाहर वगैरह में, तो वहां के भी आपको डिटेल्स या रिकॉर्ड आपको अप्रोप्रिएटली मेंटेन करने पड़ेंगे। दैट इज व्हाट दिस रूल सेज। सब क्लॉज 6 टॉक्स अबाउट कि अगर जैसे हमने बोला कि दूसरी जगह पर गुड्स पाए गए तो वहां पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ऐसा लिखा है। ऑब्वियसली आप कंटेन कर सकते हो कि प्रोसीजरल लैब से रजिस्ट्रेशन अमेंड नहीं किया था वगैरह, लेकिन हम कहेंगे कि डोंट टेक रिस्क। अगर आपके कोई प्रीमाइसेस है जहां पर प्रैक्टिकली आप गुड्स रखते हो दूसरे लोकेशन पे, तो इंश्योर करो कि वो रजिस्ट्रेशन में आपके ऐड हो जाए, अदरवाइज आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। देन जो भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है आपके, बराबर है, उसके जो रिकॉर्ड है उसके रिकॉर्ड आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे भी रखने हैं। तो आपको यार दोनों जगह कैसे पॉसिबल है? तो गवर्नमेंट ने इफेक्टिवली कहा है कि भैया अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रख रहे हैं तो हेड ऑफिस में इवन ब्रांच की भी ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली आप चेक कर सकते हो ना, आप दिखा सकते हो वहां पर एक्सेस लेके। हो सकता है टीम व्यूअर से हो सकता है, या अगर आपका क्लाउड बेस्ड है, SAP है, टैली ERP है, तो यू वुड बी इजीली एबल टू डू दैट। देन सब क्लॉज 8 टॉक्स अबाउट यू डोंट whenever you want to do some amendment, अगर आपके फिजिकल रिकॉर्ड से आप खाता वगैरह रखते हो तो गवर्नमेंट ने बोला है कि इरेज मत करो पूरा, उसको ब्लैंक आउट मत करो, बराबर है, स्कोर आउट करो और वह अटेस्ट कर लो, साइन मार दो कि ये क्यों चेंज किया था, क्या किया था और किसने किया था, बराबर है। इलेक्ट्रॉनिकली ये कर रहे हो तो आपको लॉग रखना है। अभी आप कहोगे यार इतना माइन्यूट में गवर्नमेंट क्यों जा रहा है और हम क्यों इतना सीखना चाहते हैं या क्यों सीखना है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है? उसका लिए इंपॉर्टेंस, उसका रीजन ये है कि डिपार्टमेंट अगले कुछ दिनों में काफी सारा इन्वेस्टिगेशन करने वाला है, ऑडिट करने वाला है, रिव्यू करने वाला है, असेसमेंट करने वाला है। तब यहाँ पर अथॉरिटीज आपको ये सब डिटेल मांगेगी और कहेगी कि भैया आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दो, आपने अगर चेंजेस किए तो लॉग दो उसका, अगर आपने फिजिकली रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं, कुछ एरर या कुछ इरेज किए हैं तो उसका डिटेल दो हमको। सो यू हैव टू एंश्योर कि कुछ भी अगर आप रिकॉर्ड में चेंजेस कर रहे हो, यू नीड टू एंश्योर दैट अप्रोप्रिएट डिटेल्स आर मेंटेन बाय, उसका लॉग आपको मेंटेन करना पड़ेगा। बहुत बार आपको पता है कि जो खाता बुक वाले लोग होते हैं, अड़तिया वगैरह, जो अगर आप मार्केट यार्ड में जाओगे, अभी तो लगभग कोई यूज नहीं करता है फिजिकल बुक्स, लेकिन गांव में वगैरह करते रहेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट फिजिकली मेंटेन कर रहे हो, खाता बुक वगैरह, तो वहां पर आपको वॉल्यूम वाइज रखना है सीरियली। आपको पता है जैसे आपका इंस्टीट्यूट का बुक आता है वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, बराबर है ना,
तो एग्जैक्टली सिमिलरली बुक्स का भी आप वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 रखो, बराबर है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, एक वॉल्यूम रखते हैं जो गवर्नमेंट को दिखाना है, एक वॉल्यूम रखते हैं जो गवर्नमेंट को नहीं दिखाना है। तो गवर्नमेंट ने बोला वैसा अलाउड नहीं है, सीरियली मेंटेन करो आप। तो एक कंप्लीट हो गया तो उसके बाद सीरियल नंबर 2 में जाओ, पैरेलली बुक्स मेंटेन नहीं करना है। देन उसके बाद बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट अगर या आपके रजिस्टर्स अगर दूसरे लोकेशन पे पाए गए, आपके घर पे रेड हुआ, आपके ऑफिस में रेड हुआ, कुछ रिकॉर्ड मिले ही नहीं, बाद में पता चला ऑफिसर को अरे ये रिकॉर्ड तो दूसरी जगह रखे, उसने उसके ब्रदर इन लॉ के घर पे रखे, तो गवर्नमेंट ऑफिसर वहां जाके वहां से रिकॉर्ड भी सीज कर सकता है, ले सकता है। एंड अगर पता चला कि ये रिकॉर्ड उस आदमी के है जिसके ऊपर पहले छापा पड़ा था, देन गवर्नमेंट ये प्रिज्यूम करेगा कि ये रिकॉर्ड उसी पर्सन के जहां पर पहले छापा पड़ा था, एंड देन ब्रदर इन लॉ से वो गुड्स या रिकॉर्ड सीज किए गए। उसके बाद कुछ आपको पता है कि जब हम प्रिंसिपल जब सप्लाई करता है एजेंट्स को, तो ही सपोज टू पे टैक्स ऑन दैट। सिमिलरली व्हेन एजेंट इज सप्लाइंग टू प्रिंसिपल, ही सपोज टू पे दैट टैक्स। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई एजेंट को कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे स्पेसिफिकली, दैट इज अंडर सब क्लॉज 11। फिर सब क्लॉज 12 में बात की है मैन्युफैक्चरर को बारे में। मैन्युफैक्चरर का आपको पता है कि भैया मैन्युफैक्चरर क्या करता है, टिपिकली रॉ मटेरियल लेता है, उसको कन्वर्ट करता है फिनिश प्रोडक्ट में। तो गवर्नमेंट ने वहां पर कहा है कि रॉ मटेरियल रिलेटेड डिटेल रखो, क्या मैन्युफैक्चर किया उसका डिटेल रखो, आउटपुट क्या निकाला उसके डिटेल रखो। तो माइन्यूटली हम देखते हैं एक मैन्युफैक्चरर को क्या मेंटेन करना चाहिए आगे। सिमिलरली सर्विस प्रोवाइडर के बारे में भी यही कहा गया है। देन वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है कि डेवलपर, बिल्डर या वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो टिपिकली उनका हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, बराबर है। इफेक्टिवली इवन एज अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर यू आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन सर्टेन डिटेल्स, बराबर है, दैट इज स्पेसिफाइड अंडर सब क्लॉज 14। देन सब क्लॉज 15 की बात आती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर मैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकता हूँ क्या? आंसर इज यस। गवर्नमेंट ने बोला इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख भी सकते हो और आपको उसको डिजिटल सिग्नेचर से भी आप उसको वैलिडेट आपको करना पड़ेगा। देन सब क्लॉज 16 आता है जो टॉक्स अबाउट कि अगर आपने मेंटेन फिजिकली की है, मेंटेन मैन्युअली की है, बराबर है, तो आपको वो रिकॉर्ड एक्सेसिबल रखने पड़ेंगे। आप मेंटेन करोगे और बोलोगे सर वो तो रिकॉर्ड एकदम गोडाउन में एकदम नीचे है, वो उसके ऊपर बहुत सारे गुड्स है, तो वैसा नहीं। ऑफिसर जब आएगा तो दिस शुड बी एक्सेसिबल। नहीं तो मेंटेन किया छज्जे पे रखे, किधर ऐसी जगह की एक्सेस ही नहीं ऊपर है, छुपा के रखे, तो गवर्नमेंट बोलेगा नो, आपको एक्सेसिबल फॉर्म में रखना है, बराबर है। बिकॉज गवर्नमेंट ने जब भी रेड किया है लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में, एक्साइज रेजिम में, सर्विस टैक्स में, इनकम टैक्स में, वैट में, उनको ये सब एक्सपीरियंसेस आए हैं कि लोग ऐसा करते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई एक्सेसिबल रखो स्पेसिफिकली, बिकॉज गवर्नमेंट कांट से कि आप छुपा के मत रखो, गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा आप रिकॉर्ड एक्सेसिबल रखो। देन कैरियर्स रहते हैं जैसा ट्रांसपोर्टर्स है, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स है, तो उनको भी कुछ डिटेल मेंटेन करने हैं। दैट इज बेसिकली रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द गुड्स दे हैव हैंडल, कि कहाँ से गुड्स आए, किसको भेजे, क्या गुड्स थे वगैरह, बराबर है। एंड फाइनली अगर आप गुड्स के रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट अगर आप मेंटेन कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया मेंटेन करने के बाद अगर हमारा ऑफिसर आता है और आपको डिमांड करता है कि बुक्स ऑफ रिकॉर्ड दिखाओ, तो आपको रिकॉर्ड दिखाने भी पड़ेंगे। सो यू आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस दोज बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल्सो ऑन डिमांड। उसके बाद आता है 57 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में सब क्लॉज जो रूल 57 है, इसमें 3 सब क्लॉज, ये सिंपल है। बिकॉज अभी तक हमने क्या देखा, सेक्शन 35 में कितने सब क्लॉज है? 6 सब क्लॉज है। रूल 56 में कितने सब क्लॉज है? 18। रूल 57 में कितने हैं? सिर्फ 3 है। वो 3 रूल क्या, सब रूल क्या कहते हैं? एक कि भैया इलेक्ट्रॉनिकली रख लो, नो प्रॉब्लम, बैकअप लेकर रखो। कॉमन सेंस है ना, बैकअप लेकर रखा। नहीं तो आप बोलोगे सर वो आग लगे, मैटर हमारा पूरा डिटेल जल गए, हमारे पास कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है, तो गवर्नमेंट बोलेगा दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, बैकअप रखो। सेकंड, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखा है तो रीडेबल फॉर्मेट में दो, नहीं तो आप एनक्रिप्शन करके दोगे वो बिटकॉइन के जैसा, बराबर है, कि कोई डिक्रिप्ट ही नहीं करना पड़ा, या करना भी पड़े तो उनको सीबीआई और सीआईडी वालों को भेजना पड़े। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसे फॉर्मेट में मत दो, अगर देना है तो अप्रोप्रिएट रीडेबल फॉर्मेट में दो। सेकंड, हमको अगर लगता है कि भैया ये जो डेटा आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखा है, मुझे ट्रायल बैलेंस का, P&L का, इनवॉइस का फिजिकल कॉपी चाहिए, तो आप मुझे हार्ड कॉपी भी आपने देना चाहिए जब मैं डिमांड करूंगा तो, बराबर है। एंड फाइनली अगर आपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में डेटा दिया और उसका कुछ स्पेसिफिक पासवर्ड है, कुछ कोड्स आपने यूज किए हैं, बराबर है, तो उसका आपको एक्सप्लेनेशन गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट हैज स्पेसिफिकली मेंशन अंडर रूल 57, बराबर है। तो यहां तक जो हमने डिस्कस किए ये ओवरव्यू था। ओवरव्यू में आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो अभी हम डिटेल में जाते हैं। नहीं है कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन यहां तक? परफेक्ट, तो लेट्स मूव अहेड नाउ। तो पहला सेक्शन 35 सब क्लॉज 1, तो ये क्या कहता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल कीप एंड मेंटेन
रिकॉर्ड्स एट हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बराबर है। जो आपने सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन जब लिया था उसमें जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पर आपको ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड रखने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक दो प्रैक्टिकल हमारे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हमें क्लाइंट के लिए रिसेंटली हम काम कर रहे थे, रिसेंटली दे अपॉइंटेड अस, एंड उनके काफी सारे रिटेल स्टोर थे, लगभग पूरे इंडिया में उनके आई वुड से 200 के आसपास रिटेल स्टोर्स है। तो उनका क्या होता था, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब जीएसटी रेजिम में उन्होंने जब लिया, तो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब लिया ना, तो उन्होंने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो मेन सिटी है उस स्टेट का, तो जैसा महाराष्ट्र में मुंबई है, तो उनका जो मेन रजिस्ट्रेशन है, जो मेन लोकेशन है, उसका रजिस्ट्रेशन ले लिया। लेकिन जो बाकी वाले उनके जो दुकान थे अलग अलग स्टेट में, तो महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट में उनका शॉप है प्रैक्टिकली, या गुजरात में है, तो उनके उन्होंने रजिस्ट्रेशन में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस करके ऐड ही नहीं किए थे, बिकॉज उनको किसी ने बताया नहीं या चेक नहीं किया। तो मैं कहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है लॉ के अंदर, बिकॉज अदरवाइज जैसे हमने कहा कि अगर आपके कुछ गुड्स पाए जाते हैं ऐसे लोकेशन पे या रिकॉर्ड पाए जाते हैं, तो नेचुरली अथॉरिटीज विल अज्यूम कि भैया आपने रजिस्ट्रेशन के लिया नहीं है और टैक्स नहीं पे किया, तो दिस कैन क्रिएट चैलेंजेस फॉर यू। तो इंश्योर करिएगा कि अगर ऐसे आपने मिस किया है अदर प्रीमाइसेस का ऐड करना डिटेल, तो आपको ऐड करना चाहिए। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस लॉ में प्रैक्टिकली कुछ लिखा नहीं है कि 2 या 3 हो सकता है क्या, बट वी आर सीइंग दैट टिपिकली इट इज ओनली प्रिंसिपल मींस ओनली वन प्लेस ऑफ बिजनेस, बराबर। इट कैन बी मल्टीपल। आपके हो सकता है कि मेन हेड ऑफिस एक जगह है, फिर उसके बाद आता है कि नेक्स्ट टू हेड ऑफिस एक ब्रांच रहता है, उसके बाद एक लोअर लेवल के ब्रांचेस रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली प्रिंसिपल ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस शुड बी ओनली वन। नेक्स्ट, अभी जब हम बात करते हैं रिकॉर्ड्स की कि कौन कौन से है रिकॉर्ड्स की जब हम बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला कि प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। तो ये जो पहला वर्डिंग आता है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, अभी जीएसटी तो सबको अप्लीकेबल है, ट्रेडर को भी है, सर्विस प्रोवाइडर को भी है, बराबर है, लेकिन यहाँ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स की बात आती है। क्यों? बिकॉज जो पर्सन जिसने ये रूल्स बनाए, टिपिकली उन्होंने एक्साइज रूल्स को उठाया रहेगा, या तो वो पर्सन एक्साइज बैकग्राउंड से रहेगा, तो उन्होंने उसी तरह से रूल्स या उसी तरह से सेक्शन जो है ना बनाए हैं। तो दे आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। उसके बाद आता है इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और बोथ। तो ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये पहला पॉइंट होना चाहिए भैया, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, बिकॉज जीएसटी अभी इनवर्ड सप्लाई पे और आउटवर्ड सप्लाई पे आपका लगेगा, इनवर्ड यानी रिवर्स चार्ज में, बराबर है। देन स्टॉक ऑफ गुड्स, आपने गुड्स परचेस किए थे 100 क्वांटिटी, उसके बाद बेचे आपने 80, तो स्टॉक कितना बचा 20, तो उसका आपके पास डिटेल होना चाहिए। आपने इनपुट टैक्स कितना अवेल किया उसके ऊपर, आउटपुट टैक्स कितना पेएबल था, कितना पे किया, बिकॉज आप पे 2 चीजों से कर सकते हो, कैश और क्रेडिट से, बराबर, आईटीसी से, तो वो कैसे किया, एंड सच अदर डिटेल्स एज में भी प्रिस्क्राइब, जो हम आगे अभी कपल ऑफ स्लाइड्स में देखेंगे। अभी पहले एक क्वेश्चन पूछते हैं हम आपको कि भैया अगर आपके मल्टीपल लोकेशन हुए, मल्टीपल लोकेशन, महाराष्ट्र में आपका बॉम्बे में हेड ऑफिस है एंड आपके 20 डिस्ट्रिक्ट में आपका रिटेल का शॉप है, आप साड़ी के बिजनेस में है, क्लोथ के बिजनेस में है, तो हेड ऑफिस आपका मुंबई में और बाकी 20 डिस्ट्रिक्ट में आपकी शॉप है, बराबर है। तो आपके रिकॉर्ड कहाँ पर होने चाहिए, ब्रांचेस के रिकॉर्ड रिस्पेक्ट टू ब्रांचेस में होने चाहिए आइडियली, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर मेंटेन करेंगे तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में दोनों के रिकॉर्ड होने चाहिए, प्रिंसिपल प्लेस के भी एज वेल एज ब्रांचेस के। अगर पॉसिबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप एक्सेस भी करके वो रिकॉर्ड रिट्रीव कर सकते हो एज अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, दैट इज फाइन। नाउ एडिशनली कुछ पॉइंट्स है, जैसे हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टर और रिकॉर्ड, ट्रांसपोर्टर की और गोडाउन वालों की, बराबर, वेयर हाउस वालों की। तो वहां पर क्या होता है कि कभी कभी ट्रांसपोर्टर जो होता है वो बहुत स्मॉल पर्सन रहता है, उसका 2-4-5 लाख का बिजनेस होता है। गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर ही इज रजिस्टर्ड और नॉट, जीएसटी में आप रजिस्टर्ड हो क्या नहीं एज ए ट्रांसपोर्टर, हमको कोई लेना देना नहीं, हो सकता है रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, आप रजिस्टर्ड नहीं हो, फिर भी आपने कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, बराबर है। और वो रिकॉर्ड जैसे हमने बात किया था जब ओपनिंग स्लाइड थी कि भैया कंसाइनर की, कंसाइनी के, बराबर है, कि और गुड्स के बारे में उसके अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड होने ही चाहिए। देन सब क्लॉज 5 जो आता है सेक्शन 35 का, जो बोलता है कि भैया ऑडिट के बारे में, लेकिन जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया दैट ऑडिट इज नाउ डिलीटेड। जो लॉस्ट केस, यानी जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके कुछ गुड्स मिसिंग हो जाते हैं, यू आर नॉट एबल टू इन्फॉर्म, यू आर नॉट एबल टू टेल द अथॉरिटीज कि गुड्स कहाँ गए, तो नेचुरली सब्जेक्ट टू सेक्शन 17 सब क्लॉज 5 सब क्लॉज H, बिकॉज आपका जो रिव्यू हुआ, जीएसटी ऑफिसर आपके प्रीमाइसेस पे आया, हम एग्जांपल लेते हैं, वहां पर जब आया उसने चेक किया कि भैया आपने 1000 क्वांटिटी इंजन लाए थे, बराबर है, 1000 इंजन आपने लाए थे, उसमें से 600 इंजन आपने बेच दिए, उसकी बिल्स है आपके पास।
अभी 400 इंजन तो आपके गोडाउन में होने चाहिए, आपके फैक्ट्री में होने चाहिए, लेकिन जब रिव्यू के लिए जब अथॉरिटीज आए तो वहां पर सिर्फ 200 इंजन पाए गए। तो गवर्नमेंट पूछेगा ना बचा हुआ 200 कहाँ गया, बिकॉज 400 का स्टॉक दिख रहा चाहिए था, तो 200 का कहाँ गया? आपने सर वो लॉस्ट हो गए या डिस्ट्रॉयड हो गए या नॉन ट्रेसेबल है या स्टोलन है। तो गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है, नो प्रॉब्लम, अंडर सेक्शन 35 सब क्लॉज 6 यू आर एक्सपेक्टेड टू पे जीएसटी ऑन दैट अमाउंट। बिकॉज गवर्नमेंट ये अज्यूम करेगा कि भैया 200 इंजन ऐसे गायब थोड़ी हो सकते हैं। कॉमन अगर आप देखोगे लॉजिक कि 200 इंजन ऐसे जा सकते हैं क्या, बराबर है? तो गवर्नमेंट बोलेगा भैया अगर ऐसे हुआ है, अगर आप बोल रहे हो रिकॉर्ड अगर आपके पास नहीं है, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन, देन वी विल अज्यूम प्रैक्टिकली, बराबर है, कि दैट टैक्स वाज नॉट पेड ऑन दिस गुड्स एंड विल बी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन दिस गुड्स अंडर सेक्शन 35 सब क्लॉज 6। परफेक्ट, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने कहा सेक्शन 35 सब क्लॉज 1 में बोला गया है यू नीड टू मेंटेन रिकॉर्ड। कौन कौन से रिकॉर्ड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया? मैन्युफैक्चर रिलेटेड रिकॉर्ड जो मैन्युफैक्चरर मेंटेन करता है, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के इनवर्ड आउटवर्ड के स्टॉक का डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करना है। एडिशनली इन एडिशन टू दैट रूल 56 सब क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आल्सो, उसकी भी रिकॉर्ड मेंटेन करने। रिवर्स चार्ज के भी डिटेल मेंटेन करने। रिवर्स चार्ज की डिटेल क्यों मेंटेन करने आपको? अगर आपको एडवोकेट कोई सर्विस दे रहा है, बराबर है, तो एडवोकेट ने उसकी डिटेल मेंटेन करने चाहिए, आपने क्यों मेंटेन करने चाहिए? व्हाट इज द रीजन? आरसीएम डिटेल्स आपके पास क्यों वो डिटेल मेंटेन होने चाहिए कि उसने क्या सर्विस दिया, कितने का बिल दिया? व्हाई इट शुड बी मेंटेन बाय यू? व्हाट इज द रीजन? कैन एनीबॉडी मेंशन? कैन एनीबॉडी शेयर? उसका रीजन क्या होगा? सिंपल रीजन है कि आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है, इसके लिए गवर्नमेंट आपको कह रहा है। इन एडिशन जो आपको रिकॉर्ड तो मेंटेन करनी है, बराबर है, इन एडिशन अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, यानी कि आप अकाउंटिंग तो करोगे, लेकिन भैया फिजिकल इनवॉइसेस का क्या, शिपिंग बिल का क्या, बिल ऑफ एंट्री, टैक्स पेमेंट चालान, डिलीवरी चालान, ये सब डिटेल आपको अप्रोप्रिएटली मेंटेन करने पड़ेंगे। ई बिल का डेटा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिसीट वाउचर, सेल्फ इनवॉइसेस, रिफंड वाउचर, ये सब डेटा आपको मेंटेन करना पड़ेगा, बराबर है। यानी कि आपके पास हो सकता है फाइल्स हो तो उसमें आप रख सकते हो। स्टॉक रिकॉर्ड की जब हम बात करते हैं, बिकॉज हमने देखा इवन सेक्शन 35 सब क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट स्टॉक रिकॉर्ड आपने मेंटेन करना है। तो स्टॉक में क्या क्या मेंटेन करना है, कोई बता सकता है? लॉजिकली आप बताइए क्या क्या मेंटेन करोगे स्टॉक में? आप स्टॉक में क्या क्या मेंटेन करना पड़ेगा आप में स्टॉक रिकॉर्ड्स में आपको टिपिकली? व्हाट डिटेल्स नीड टू बी मेंटेन? स्टॉक में आपको क्या क्या मेंटेन करना पड़ेगा? ओपनिंग, क्लोजिंग वगैरह क्या क्या लिखना पड़ेगा? तो टिपिकली ओपनिंग बैलेंस, perfect, how many goods are coming in and how many goods are going out, superb, right विष्णु? तो यहाँ पर यस राज यू आर राइट, यस सुयश। तो बेसिकली ओपनिंग स्टॉक क्या है, कितने गुड्स मिले हैं, कितना गुड्स सप्लाई किया है, कुछ गुड्स स्टोलन हो सकते हैं, लॉस्ट हो सकते हैं, बराबर है, एंड बैलेंस कितना बचा है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि भैया ये स्टॉक रजिस्टर आपको मेंटेन करना है। इफेक्टिवली अगर आप देखोगे इन एक्साइज रेजिम, एक्साइज में भी देयर वाज अ रूल 10 ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल विच टॉक्स अबाउट डेली स्टॉक अकाउंट। तो एग्जैक्टली डेली स्टॉक अकाउंट के जैसा ही उन्होंने सिमिलर रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने के लिए बोला है। उसके बाद बात आती है एडवांसेस की। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया इवन एडवांसेस का भी डिटेल आपको रखना है, और वो क्या क्या रखना है आपको, लेट अस अंडरस्टैंड। तो एडवांस रिसीव कितना हुआ, आपने एडवांस कितना पे किया, और जो बहुत बार पता है आपको एडजस्ट करना पड़ता है, बिकॉज जब एक्चुअल इनवॉइस आप रेज करोगे तो एडवांस एडजस्ट करोगे, तो उसके बारे में भी आपको डिटेल अप्रोप्रिएटली रखनी पड़ेगी। टैक्स रिकॉर्ड की जब हम बात करते हैं, कितना टैक्स कलेक्ट किया, पे किया, आईटीसी कितना अवेल किया, ऑल दैट डिटेल्स यू नीड टू मेंटेन। अभी उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है वो ये आता है, दैट इज हाउ मेनी गुड्स यू हैव परचेज एंड फ्रॉम हुम यू हैव परचेज। अब ये डिटेल्स क्यों रिक्वायर्ड है? जीएसटी में आपने देखा रहेगा, न्यूज़पेपर में कंटिन्यूअसली एक न्यूज बहुत आता है, एंड दैट इज फेक इनवॉइसिंग का। काफी सारे लोगों को अरेस्ट हो रहा है फेक इनवॉइसिंग में वगैरह। तो गवर्नमेंट कह रहा है कि भैया आपने अगर कहा है कि मैंने गुड्स परचेस किया है, तो आपको सप्लायर का नाम, किससे परचेस किया है, वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। बिकॉज बाद में पता चला वो फेक पर्सन था, पता चला वो रजिस्टर्ड ही नहीं था, पता चला उसने जीएसटी कलेक्ट किया लेकिन पे ही नहीं किया, बराबर है, तो हम आपके पास आ सकते हैं। इसके लिए आपको अप्रोप्रिएटली वो सब डिटेल मेंटेन करने ही पड़ेंगे। तो ये डिटेल इवन बिल्डर के पास भी होने चाहिए, डेवलपर है कोई भी हो। तो जहां से भी जो भी पर्सन है, अगर आप कहोगे कि मैंने 100 फ्लोर का एक बिल्डिंग बनाया है, बराबर है, 100 फ्लोर का, मैं टॉप मोस्ट एकदम ऊंचा सबसे टावर बनाया है मैंने, तो गवर्नमेंट बोलेगा वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन,
लेकिन वो फ्लोर्स का जो 100 फ्लोर्स का बिल्डिंग बनाया, भैया उसका रिकॉर्ड दो, कहाँ से सीमेंट लिया, कहाँ से स्टील लिया, बराबर, वो सब भी डिटेल आपको आएंगे, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बात करेंगे। लेकिन एज ए बिल्डर जब आप परचेज कर रहे हो गुड्स किसी से भी, तो यू हैव टू मेंटेन। सिमिलरली एक सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, आपने लैपटॉप परचेज किए, गवर्नमेंट ने आया चेक किया आपके पास 100 लैपटॉप है, बराबर, आपका 100 टीम मेंबर काम करता है आपके पास, तो 100 लैपटॉप लिया कहाँ से, फर्नीचर है, फर्नीचर कहाँ से लिया, तो जो भी परचेज कर रहे हो उसका डिटेल आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, बराबर है। जब हम बात करते हैं सेल की, सप्लाई की, तो गवर्नमेंट बोलता है कि भैया सप्लाई वेरेवर रिक्वायर्ड, यानी कि टिपिकली B2C केस में आपको रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन B2B केस में आपको डिटेल रिक्वायर्ड है, यू नीड टू मेंटेन देम। सिमिलरली अगर आपने कहीं पर गुड्स स्टोर किए हैं इंक्लूडिंग ट्रांजिट में, बिकॉज कभी कभी ड्यूरिंग ट्रांजिट हम गुड्स स्टोर करते हैं, बराबर है, गुड्स यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, गुड्स 2 दिन पहले पहुंच गए दिल्ली में, आपका जो फैक्ट्री वाला है वो बोला मैं आज ले नहीं सकता बिकॉज मेरे फैक्ट्री में ऑलरेडी बहुत अनलोडिंग हो रहा है, तो बोलेगा एक दिन बाद में लेके आओ, तो देन यू हैव टू ट्रांजिट वे से आपको स्टोर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोला वो सब डिटेल आपने मेंटेन करना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर है, ताकि जो गवर्नमेंट ऑफिसर आपके पास आएगा, you need to be in a position to explain the details of all the records and data and stock which you are having, correct, and also the goods which are in transit, जो आपके पास है, जो नहीं है और जो ट्रांजिट में, सबका डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। अगर कभी कभी अगर आपको पास रेड हुआ एंड आपके गुड्स पता नहीं आपके पास नहीं मिले, दूसरे जगह पर मिले, तो गवर्नमेंट फिर बोलेगा कि भैया आपने रिकॉर्ड बराबर मेंटेन किए नहीं है। अगर आप एक्सप्लेन कर पाओगे तो दैट इज सेपरेट, कि हो सकता है कि कुछ आग लग गई, कुछ पानी चला गया था, इसके लिए इमीडिएट बेसिस पे अवेलेबल नहीं था जगह, तो डायरेक्टर के घर पे रखे गए थे, समथिंग लाइक दैट, एक्सेप्शनल केस में ऐसा कुछ हुआ है, दैट इज फाइन, वो भी कपल ऑफ डेज के लिए रखा था, बराबर है, तभी रेड हुआ, तो वैसे आप एक्सप्लेन कर पाओगे। लेकिन अगर रेगुलर कोई सीजन मीन्स कोई रीजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और दूसरी जगह पे गुड्स पाए गए, और ऐसा हुआ है काफी सारे केसेस है जहाँ डायरेक्टर के घर पे 8-8, 10-10 करोड़ के गुड्स पाए गए, तो गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसा लग रहा है ऐसे केस में कि ये गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी आप निकालने वाले थे, तो गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसे केस में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो यू हैव टू फाइट इट आउट, अगर आपको अदर वे कंटेन करना है तो फाइट करना है कि भैया टैक्स पेबल नहीं है, मैंने सिर्फ फॉर सर्टेन XYZ रीजन स्टोर किया था, परमिसिबल नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग अगर ऐसा हुआ तो फाइट करना पड़ेगा, बराबर है। देन जैसे हमने बात किया था, जो भी आप रिकॉर्ड मेंटेन करने उसका लॉग भी आपको मेंटेन करना है। लॉग यानी कि पहले ये एंट्री किया था 1000 रुपए का, बाद में उसको 800 का कर दिया, तो क्यों किया आपने, या पहले 1000 रुपए का एंट्री किया था, बाद में उसका वैल्यू 1200 कर दिया, क्यों किया, तो उसका आपको एडिट का लॉग रखना पड़ेगा। देन तो आपको पता है कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, काफी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ क्लाइंट्स के रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, बराबर है, या कुछ अकाउंटेंट है, कुछ टैक्स प्रैक्टिशनर है, कुछ जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, तो जो ये अकाउंट मेंटेन करते हैं दूसरों का, बराबर, अकाउंटिंग वगैरह करते हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर दूसरे लोकेशन पे जब रेड हुआ था, सर्च हुआ था, वहां पर अगर किसी और पर्सन के रिकॉर्ड मिले, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि भैया वो उसी पर्सन के रिकॉर्ड है जिसके नाम से बिल बने हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी कभी आपके पास भी एज ए सीए कंसल्टेंट अगर कभी हुआ, गवर्नमेंट अथॉरिटीज आया, रिकॉर्ड दूसरों के मिले जहां पर टैक्स नहीं पे हो रहा था, तो अथॉरिटी सर्टेनली आपको भी क्वेश्चन कर सकता है। देन फाइनली नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एज ए मैन्युफैक्चरर, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर, सर्विस प्रोवाइडर, आपने क्या डिटेल्स मेंटेन करनी है। तो यहाँ पर जैसे हमने बोला है, डिस्कस किया था, क्या एज ए मैन्युफैक्चरर आप क्या करते हो कि भैया आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या कहता है कि जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो किससे करोगे, रॉ मटेरियल से, तो परफेक्ट, तो रॉ मटेरियल से अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, देन प्रैक्टिकली जो भी गुड्स आपने बनाए हैं, बराबर, उसका क्वांटिटी वाइज डिटेल्स, करेक्ट, यू नीड टू मेंटेन क्वांटिटी वाइज डिटेल्स ऑफ दोज गुड्स। तो यहाँ पर क्या क्या आएगा, तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जो भी आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स के हिसाब से हो सकता है, अगर आप कार बना रहे हो तो आपको इंजन लगता है कार के लिए, हो सकता है डोर्स लगते हैं, टायर्स लगते हैं, बराबर है, तो वो डिटेल आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, करेक्ट, सो दैट अथॉरिटी जब आपके पास आएगा दे वुड बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड, करेक्ट। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं सर्विस प्रोवाइडर की, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि सर्विस प्रोवाइडर को भी क्वांटिटेटिव डिटेल्स रखनी है गुड्स की, तो आइडियली एज अ सर्विस प्रोवाइडर आपके पास कोई गुड्स आप यूज नहीं करते हो क्वांटिटी वाइज, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन कुछ हो सकते हैं जैसा कि आपके पेजेस है, बराबर है, आपके फर्नीचर है, जो भी रहेगा, आप जो भी परचेस करते हो तो उसकी भी गुड डिटेल्स आपको रखनी पड़ेगी। कुछ सर्विसेज के केस में गुड्स भी होता है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप पेस्ट कंट्रोल वाले हो, तो पेस्ट कंट्रोल वाले को दवाई लेनी पड़ती है ना, तो उसका डिटेल आपको रखना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे कि मैंने 1000 घर में जाके पेस्ट कंट्रोल किया, तो गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है 1000
होम्स में जाके अगर पेस्ट कंट्रोल किया है तो उसके लिए इतना इतना दवाई लगना चाहिए। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा प्रैक्टिकली कि क्वांटिटी वाइज आपने कितना यूज किया और उसका कोरिलेशन क्या है। दैट द रीजन गवर्नमेंट इज सेइंग इवन अबाउट बेसिकली द सर्विस प्रोवाइडर। नाउ जब हम बात करते हैं मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स की, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर भी उसमें कवर होता है। तो ना वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर करके जो वर्ड यूज किया है रूल्स में गवर्नमेंट ने, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर है, ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर ने सिर्फ एक बिल्डर आ सकता है केस में, और वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर मीन्स अ पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर है नॉर्मल। तो एक बेसिक डिबेट कर सकता है, लेकिन हमारा ये मानना है एक डेवलपर बिल्डर भी ना, उसको आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर ही मानोगे, because he is supplying the goods before construction, he is supplying the building before construction, so he is as good as a works contractor only for the purpose of GST. even कुछ सुप्रीम कोर्ट के पहले, जीएसटी आने के पहले भी कुछ जजमेंट है जहां पर डेवलपर को when he is supplying the units before construction उसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर माना गया है। एंड एक जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है उसके कॉन्टेक्स्ट में इट इज एलएनटी का जजमेंट, बराबर है। तो आप कह सकते हो कि एक डेवलपर है, बिल्डर है, ही वुड आल्सो बी अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर। तो उसमें क्या क्या डिटेल मेंशन करने चाहिए, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड। अगर समझो राजेश कहता है कि यार अभी मेरे पास इतना पैसा, मैं क्या करेगा, बराबर है। तो वो बोलता है कि मुझे अभी बंगला बनाना है। तो राजेश का एक मस्त 5 खेत वगैरह में बंगला बनाया, बराबर, एक पर्सन ने, कॉन्ट्रैक्टर ने। तो उसके लिए जो भी उसने काम किया है, तो राजेश का नाम, राजेश का एड्रेस, बराबर है, तो वो डिटेल मेंटेन करेगा। क्यों? बिकॉज ऑन बिहाफ ऑफ राजेश उसने पूरा बंगलो वहां पर, उसका हो सकता है राजेश का फार्म हाउस है वो उसने बनाया है, करेक्ट। तो वो उसके डिटेल मेंटेन करेगा। उसमें क्या क्या गुड्स लगे, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी, बराबर है, वो सब डिटेल मेंटेन करना पड़ेगा, बराबर। तो एज ए डेवलपर भी जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हो 10 माला 20 माला जो भी रहेगा, तो उसको आपको डिटेल मेंटेन करना पड़ेगा, कितना सीमेंट लगा, स्टील लगा, ऑल दैट डिटेल्स यू हैव टू मेंटेन, कि जितने भी गुड्स आपने रिसीव किए। सिमिलरली हर गुड्स, जितना भी सीमेंट स्टील आपने रिसीव किया वो यूटिलाइज थोड़ी होगा, पार्टली यूटिलाइज होगा। तो कितना यूज हुआ उसमें से, करेक्ट। देन आपने जो भी पेमेंट अलग अलग लोगों को किया, बिकॉज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, टिपिकली काफी लेबर कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, मुकादम रहते हैं, उनको भी पेमेंट करना पड़ता है। तो वो भी सब डिटेल कि किसको पेमेंट किया, सीमेंट कहाँ से लिया, बराबर, वो सब डिटेल उसमें आ जाएगा। एंड फाइनली नेम एंड एड्रेसेस ऑफ सप्लायर फ्रॉम हु ही रिसीव्ड गुड्स एंड सर्विसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आप देखोगे डेवलपर कॉन्ट्रैक्टर के पास ये डिटेल नहीं रहती है, टिपिकली स्मॉल प्लेयर्स के पास, लेकिन जीएसटी लॉ में लिखा है भैया आप रजिस्टर्ड हो तो एज अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर आपको मेंटेन करने ही पड़ेगी। सिमिलरली जब हम एजेंट की बात करते हैं तो उसको एक ऑथराइजेशन मिलता है कि नाउ यू आर वर्किंग एज एजेंट ऑफ आवर्स, बराबर है। सिमिलरली उसको कितने गुड्स मिले, कितने उसने बेचे, कितना टैक्स पे किया, ये सब डिटेल एक एजेंट को मेंटेन करने पड़ेगी। उसके बाद फाइनली जैसे हमने कहा कि भैया गवर्नमेंट कहेगा कि मुझे ये रिकॉर्ड चाहिए, तो ऑन डिमांड जब भी अथॉरिटीज मांगेंगे आपको ये रिकॉर्ड देने पड़ेंगे। बहुत बार लोग क्या करते हैं, डायरी वगैरह में डिटेल्स लिखते हैं, बराबर है, फिजिकल मेंटेन नहीं करते हैं। गवर्नमेंट को, उनको लगता है कि गवर्नमेंट को क्या ही पता चलेगा, बराबर है। लेकिन बहुत सारे जजमेंट्स है जिसमें बोला गया है कि अगर आपके प्राइवेट नोटबुक्स में, प्राइवेट अकाउंट्स में, डायरी में अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन लिखे है तो नेचुरली उनके ऊपर गवर्नमेंट अथॉरिटी रिलायंस प्लेस कर सकता है। एंड देयर इज आल्सो सेक्शन 140 व्हिच टॉक्स अबाउट दैट, बराबर है। काफी सारे जजमेंट में बोला भी गया है कि अगर ऐसी डायरीज वगैरह मिलते हैं तो उनके ऊपर अथॉरिटी रिलाय कर सकता है, करेक्ट। So with this friends we are almost through with the detailed discussion with respect to books of account, बराबर है। आप कहोगे कि सर काफी सारा डिटेल है, कितने सारी चीजें हमको मेंटेन करनी है, तो प्रैक्टिकली ये कैसे करेंगे। बट यस, एज इट इज सेड दैट पता नहीं कैसे करना है, लेकिन हमको करना ही पड़ेगा, करना ही होगा। विद दिस वी आर ऑलमोस्ट नाउ थ्रू विथ द सेशन विद रिस्पेक्ट टू बुक्स ऑफ अकाउंट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही कि भैया सावधान रहे, सतर्क रहे, ऑल दिस डिटेल अप्रोप्रिएटली मेंटेन करें। अभी कुछ लोगों के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन आए हैं, लेट अस टेक दोस क्वेश्चन स्पेसिफिकली विच रिकॉर्ड रिलेटेड टू बिल्डर एंड कॉन्ट्रैक्टर टू मेंटेन। तो प्रकाश जी अभी हमने जैसा डिस्कस किया वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर का जो डिटेल है वो, एंड आप सर्विस प्रोवाइडर हो, तो दोनों आपको मेंटेन करने पड़ेगा। ऑब्वियसली डिटेल एक ही मेंटेन करना है, लेकिन दोनों आपको रूल पढ़ने पड़ेंगे, सब रूल। यूआरडी परचेज के लिए जो है अनरजिस्टर्ड डीलर के लिए, जीएसटी लॉ में ना 2017 में जब शुरुआत में जीएसटी आया था तब बोला गया था कि 5,000 रुपए के ऊपर अगर परचेस करते हो अनरजिस्टर्ड डीलर से तो आपको रिवर्स चार्ज में भरना पड़ेगा टैक्स। लेकिन बाद में गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि भैया ये प्रोविजन गलत है, इनकरेक्ट है, वी कैन नॉट सैडल द टैक्स पेयर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टैक्स व्हेन ही इज परचेसिंग फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। अगर वैसा किया
तो स्मॉल टैक्स पेयर का बिजनेस ही बंद हो जाएगा, और हुआ भी बंद प्रैक्टिकली। तो गवर्नमेंट ने बाद में 2017 में, नवंबर 2017 के आसपास गवर्नमेंट ने उसको अमेंड कर लिया और कहा कि यूआरडी से एक परचेस करोगे तो टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है रिवर्स चार्ज में। तो वो रिक्वायरमेंट तो चला गया, लेकिन अगर आप देखेंगे रूल 56 जब हमने पढ़ा कि आप जिससे भी परचेस कर रहे हो उसके पास से जब परचेस करो तो यू विल हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड। तो टिपिकली हम क्या कहते हैं एज अ प्रोफेशनल, एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर, हमने हर जगह रेकमेंड किया है अगर आप अनरजिस्टर्ड प्लेयर से भी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है उससे भी आप परचेस कर रहे हो नो प्रॉब्लम, लेकिन एटलीस्ट उसका पैन नंबर, उसका एड्रेस प्रूफ आप लेके रखो, बिकॉज जीएसटी अथॉरिटीज आपके पास आने वाला है। वो तो स्मॉल टैक्स पेयर है, उसका 5-7 लाख रुपए टर्न ओवर है, बराबर है। द गवर्नमेंट विल नॉट बॉदर हिम बट दे विल बॉदर यू। एंड हो सकता है गवर्नमेंट जब आपसे डिटेल ले पैन नंबर का तो पता चलेगा आपको उसने 5-7 लाख का माल बेचा है, किसी और को भी 5-7 लाख का, ऐसे 10-12 लोगों को बेचा है, तो उसका रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड उसने क्रॉस कर लिया है, लेकिन he is supplying goods to all these people saying that he is not required to be registered, and that's the reason the government is saying कि भैया जब हम आपके पास आएंगे when we are going to ask you the details of how much you have purchased, बराबर है, तो you will have to maintain the detail name and उसका complete address आपको रखना पड़ेगा, बराबर है। तो नाम बराबर है कि नहीं, एड्रेस बराबर है कि नहीं, उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं क्लाइंट को कि भैया आप जो भी रहेगा परचेज जब कर रहे हो किसी से तो आप उसका पैन कार्ड लो और उसका ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी आप एड्रेस प्रूफ करके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल जो भी रहेगा आप लेके रखो, प्रेफरेबल है। बहुत ही छोटा परचेस है 2-3-5 हजार रुपए का, दैट इज फाइन, बट टिपिकली रेगुलर अगर आप किसी परचेस करो यू शुड मेंटेन दैट। आई होप द आंसर वी आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन यूआरडी का, वेदर सेल्स इनवॉइसेस साइन बाय। और रीना जी अभी क्या हुआ है, ई इनवॉइसिंग आ चुका है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टिपिकली अभी क्या है, जीएसटी लॉ आने के पहले एक्साइज लॉ में लिखा गया था फिजिकली आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। जीएसटी लॉ में ना टैक्स इनवॉइस के बारे में जो रूल बात करता है, रूल 46, उसमें लिखा नहीं है कि स्पेसिफिकली आपको जो डिजिटल सिग्नेचर के बारे में कि आपको डिजिटली करना है क्या फिजिकली करना है वगैरह, करेक्ट। तो यहाँ पर थोड़ा लीवे है, लेकिन हमने रिकमेंड क्या किया है क्लाइंट्स को प्रैक्टिकली कि अगर पॉसिबल है तो फिजिकली ही कंटिन्यू करिए। अब डिजिटली कर सकते हो, डिजिटल साइन करके तो नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल, यू कैन डू इट, बट ऐसा मत करिएगा कि आप इनवॉइसेस प्रिंट कर रहे हो और उसके ऊपर वो पीडीएफ वाला साइन रहता है ना, पीडीएफ वाला साइन अटैच कर रहे हो, दैट मे नॉट बी सीन एज ए कंप्लायंस बाय द गवर्नमेंट। या तो डिजिटली साइन करो या तो फिजिकली प्रॉपर साइन करो, बराबर है, ये प्रेफरेबल है रीना जी, ठीक है। मेडिकल स्टोर के लिए कंपोजिशन प्लेयर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, बराबर है। जो आप सेल कर रहे हो उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना है, एंड जो इनवॉइसेस जो है वो आपको रिकॉर्ड, आपको जो टैक्स इनवॉइसेस है अगर कस्टमर मांगता है तो ठीक है आपके पास, अदरवाइज आपके पास मेंटेन होने चाहिए वो डिटेल्स, अदरवाइज आपको कैसे पता चलेगा आपने माल कितना बेचा है, बराबर है। एज फार एज जो इसके बारे में बात करें, स्टॉक का रिकॉर्ड जो है वहां गवर्नमेंट ने बोला है स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन करने की आपको जरूरत नहीं है। और जो आपके कस्टमर है B2C है, B2C का आपको डेटा नहीं रखना है भैया उसका नाम और एड्रेस क्या है, बिकॉज आपके पास तो हजारों लोग आएंगे, आप अगर सबका नाम एड्रेस लेने बैठेंगे तो धंधा ही नहीं होगा आपका। तो वहां पर आपको नाम और एड्रेस नहीं लेना है B2C वाले का, बराबर है। लेकिन जिससे परचेस कर रहे हो आप माल, वो डिटेल आपको पक्का रखना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस आर आंसर्ड नाउ। शुड वी नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक? Any specific question with respect to this topic? If not, then we can proceed. ठीक है, सुपर। आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस वेर आंसर। तो चलो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। जस्ट गिव मी कपल ऑफ सेकंड्स, मैं जो स्लाइड चेंज करता हूँ। I hope the screen is visible. I will take some notes. Yes, friends. तो geared up for the next topic. आप में से कितने लोगों को ई इनवॉइसिंग के बारे में पता है? कैन एनीबॉडी शेयर? ई इनवॉइसिंग के बारे में थोड़ा पता है या सुना है?
समथिंग यू नो अबाउट ई इनवॉइसिंग, व्हाट इज ई इनवॉइसिंग, कोई बता सकता है? यस सर, नो अबाउट इट, सुपर्ब। तो मुझे लगता है कुछ टीम मेंबर्स थे आज अपने साथ जिन्होंने ई इनवॉइसिंग का थोड़ा काम किया है, बड़ा प्रैक्टिकल, उनको थोड़ा पता है। सुपर्ब। तो अभी हम क्या करेंगे, जब आज कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उनको ही हम वो क्वेश्चन फॉरवर्ड कर देंगे। So jokes apart friends, let's move ahead. First let us understand what is e-invoicing, बराबर है? तो मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताइए आपके जो टैक्स पेइंग क्लाइंट है उन्होंने समझो इनवॉइस जो है, बराबर है, इनवॉइस बनाया और उसको पीडीएफ करके स्कैन कर दिया, स्कैन कॉपी। तो स्कैन कॉपी को आप ई इनवॉइस बोल सकते हो क्या? स्कैन कॉपी है जो पीडीएफ कॉपी है इनवॉइस का, उसको ई इनवॉइस बोल सकते हो आप बोल सकते हो उसको ई इनवॉइस? आंसर इज नो, सुपर्ब, इट इज नॉट ई इनवॉइस, बराबर है। ई इनवॉइस ने क्या, गवर्नमेंट ने कहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट से आप इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग करोगे, इलेक्ट्रॉनिक मेथोडोलॉजी से, बराबर है। यहाँ पर कुछ डेटा है इनवॉइस का जो आपको गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपलोड करना है या गवर्नमेंट को शेयर करना है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। और उसके बाद वो जब डेटा वैलिड हो जाएगा, वैलिड अगर है तो उसके बाद गवर्नमेंट आपको एक IRN नंबर और QR कोड देगा जो आपको appropriately मेंशन करना है इनवॉइस पे, एंड दैट इनवॉइस देन वुड बी टर्म्ड एज द ई इनवॉइस, बराबर है। सुपर। तो ऑल ऑफ यू आर राइट, पीडीएफ कॉपी इज नॉट ई इनवॉइस, इट इज समथिंग एल्स। इसके बारे में हम और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे ई इनवॉइस क्या होता है, लेकिन पहले हम समझते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है, ई इनवॉइसिंग गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड क्यों ला रहा है, यानी कि गवर्नमेंट को क्या जरूरत है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस लाने की, गवर्नमेंट को क्यों टैक्स पेयर के इनवॉइसिंग में घुसना है। उसका रीजन ये है, फंडामेंटली अगर आप देखोगे अक्रॉस द वर्ल्ड ई इनवॉइसिंग इज बीइंग मैंडेटेड बाय मेनी कंट्रीज। उसका रीजन है, ई इनवॉइसिंग में क्या होता है, टिपिकली यू आर एक्सपेक्टेड टू सबमिट द डेटा टू द गवर्नमेंट ऑन अ रियल टाइम बेसिस, बराबर है। राइट नाउ एज ए टैक्स पेयर, बराबर है, अगर आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है तो आप इनवॉइस का डेटा कब देते हो गवर्नमेंट को? कोई बता सकता है? आप GSTR1 कब फाइल करते हो, इनवॉइस का डेटा गवर्नमेंट को कब सबमिट करते हो आप जनरली? 10th 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, परफेक्ट, बराबर। यानी गवर्नमेंट को जो डेटा है, जो अपने जनवरी मंथ की अगर हम बात करते हैं तो जनवरी 1 से लेकर 31 ऑफ जनवरी तक का जो डेटा है वो गवर्नमेंट को कब मिलेगा? 11 फरवरी को। तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि भैया मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी, कि आपने इनवॉइस कब रेज किया? 1 जनवरी को, मुझे आपने कब बताया? 11 फरवरी को, यानी कि 41 डेज का डिले है प्रैक्टिकली मेरे लिए। तो मैं अभी इतना देर वेट नहीं करेगा। एंड गवर्नमेंट ने बोला कि आप सब लोग, आजकल तो सब सोशल मीडिया वाला जनरेशन है, बराबर है, आप सब लोग रात दिन सोशल मीडिया पे ऑनलाइन रहते हो, करेक्ट। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया अगर आप 24/7 अगर आप ऑनलाइन हो, आप न्यू जनरेशन हो, तो गवर्नमेंट ने बोला देन टैक्स पेयर जो नया जनरेशन से बिलोंग करता है उसने भी जो डेटा जो है वो रियल टाइम बेसिस पे हमको शेयर करना चाहिए। जैसा आप में से कुछ लोगों ने जैसा ये ट्रेनिंग अटेंड करते रहेंगे तो इमीडिएटली आपने स्टोरी बनाया रहेगा, इमीडिएटली आपने व्हाट्सएप पे शेयर किया रहेगा, इमीडिएटली आपने फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे शेयर किया रहेगा, आई एम अटेंडिंग दिस सेशन करके, बराबर है। तो गवर्नमेंट बोल रहा है सुपर, अगर आप इतना एक्टिव हो तो इनवॉइसेस भी अभी आप रियल टाइम पे शेयर करो हमसे, बराबर है। डोंट कीप इनवॉइसेस विथ यू, खुद के पास मत रखो, इमीडिएटली इवन बिफोर यू शेयर दैट इनवॉइस विद द कस्टमर। यानी ऐसा भी नहीं कि कस्टमर को दे दो बाद में उस दिन डे एंड पे आप गवर्नमेंट को बताओ। गवर्नमेंट बोल रहा नहीं, कस्टमर को देने के पहले मुझे बताओ, करेक्ट। तो गवर्नमेंट इज प्रैक्टिकली गेटिंग इनटू the pulse of your business. They are trying to get hold of pulse of your business because it is real time reporting of data to the government. And please note, ये data जो आप सबमिट करने वाले हो ये रियल टाइम बेसिस पे है, रियल टाइम बेसिस पे, एंड दैट टू मशीन रीडेबल है, बराबर है। वो सब मशीन रीडेबल होता है। इसकी वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट को कोई करना है कि कोई पीडीएफ कॉपी अगर आप अपलोड करोगे तो किसी को पढ़ना पड़ेगा ना, ऑफिसर को। तो गवर्नमेंट बोला पीडीएफ नहीं, एक्सेल शीट में या CSV फॉर्मेट के जैसा रहता है ना, वैसा फॉर्मेट में अपलोड करो, हम टूल देंगे, या आप कोई GST सुविधा प्रोवाइडर के थ्रू डेटा अपलोड करो। लेकिन जब आप अपलोड करोगे मशीन रीड करेगी डेटा, एंड मशीन रीड करके एनालिसिस करेगी और फिर अप्रोप्रिएट टूल्स गवर्नमेंट यूज करेगा, एंड देन द गवर्नमेंट कैन फाइंड आउट कि वेदर देयर इज एनी फ्रॉड हैपनिंग विद इन द कंट्री। तो आप कहोगे सर ऐसा कैसे होगा? इसका रीजन ये है कि जब आप डेटा अपलोड कर रहे हो ई इनवॉइसिंग जनरेट करने के लिए, IRN QR कोड, गवर्नमेंट ने बोला HSN नंबर, यानी कौन से गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो बताओ।
तो समझो आपने स्टील का स्क्रैप सप्लाई किया किसी को, बराबर है, आपने प्रीतम को स्टील का स्क्रैप सप्लाई किया एंड प्रीतम मावरे जब बिल बना रहा है वो बना रहा है कॉपर का स्क्रैप का, तो पॉसिबल है क्या? स्टील के स्क्रैप किया परचेस तो स्टील स्क्रैप ही करना पड़ेगा ना सेल। तो गवर्नमेंट को इस तरह से रियल टाइम पे डेटा के थ्रू पता चल जाएगा कि आप फ्रॉड कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। करेक्ट। अगर आप बटर परचेस कर रहे हो, बराबर, बटर परचेस कर रहे हो एंड बेचते वक्त अगर आप जैकेट बेच रहे हो तो गवर्नमेंट बोलेगा परचेस और सेल में डिस्कनेक्ट दिख रहा है इस बंदे का, तो लेट अस चेक। तो इस तरह से गवर्नमेंट राइट नाउ इज गैदरिंग द डेटा ऑन रियल टाइम बेसिस and then analyzing it using various tools and then trying to come out with various issues कि भैया कुछ fraud हो रहा है क्या, वो they are trying to convert that data into information, बराबर है। and please note as a taxpayer अगर मुझे समझना है कि भैया आप बिजनेस क्या करते हो, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिंपली आपके परचेस इनवॉइसेस देखने, मुझे सेल्स की इनवॉइस देखने, फुल स्टॉप। अगर मुझे परचेस इनवॉइसेस पता चल गया आपने क्या परचेस किया, सेल्स इनवॉइसेस पता चल गया आपने क्या किसको सेल्स किया, तो प्रैक्टिकली मुझे पूरा आपका कुंडली पता चल जाएगा। सो इनवॉइसेस आर वेरी क्रिटिकल बिकॉज जब आप जीएसटी रिटर्न बना रहे हो उसमें क्या बना रहे हो, जीएसटीआर 1 में आपका परचेस का डेटा है, जीएसटीआर 3 में आपका सेल्स का डेटा है, बराबर है। ऑब्वियसली कुछ रिवर्स चार्ज वाले सिनारियोज है बट वो कम होते हैं, एक्सेप्शनल होते हैं, बट टिपिकली आपका परचेस और सेल्स का डेटा जा रहा है। गवर्नमेंट अभी कह रहा है कि ये सब डेटा हमको रियल टाइम बेसिस पे ई इनवॉइसिंग के थ्रू आपने रिपोर्ट करना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू, एंड दैट्स वेयर आई थिंक एज अ टैक्स पेयर नाउ देयर इज अ ह्यूज चैलेंज व्हिच मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर आर गोइंग टू फेस इफ दे आर एक्चुअली इंडेजिंग इनटू सम फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी आ रहे हैं ई इनवॉइसिंग में। आपने देखा रहेगा कि ग्लोबली 3-3 साल का टाइम दिया है गवर्नमेंट ने इनवॉइसिंग को प्रिपेयर करने के लिए टैक्स पेयर को, लेकिन इंडिया में हमने सिर्फ 3 महीने का दिया है टाइम। हमने 3 महीने का भी नहीं, 15 दिन का ही मैं कहूंगा, बराबर है, एवरी 3 मंथ, बिकॉज अक्टूबर 2020 में पहली बार गवर्नमेंट ने बोला कि 500 करोड़ के ऊपर अगर आपका टर्नओवर तो इनवॉइसिंग अप्लीकेबल है। फिर उसको कम कर दिया 100 करोड़, कब से, 1 जनवरी 2021 से, फिर 1 अप्रैल 2021 से बोल दिया 50 करोड़ के ऊपर अगर आपका टर्नओवर तो आपको इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली एज अ टैक्स पेयर आप सबको, अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है तो प्रैक्टिकली आपको इनवॉइसिंग अभी एप्लीकेबल है, बराबर है। ऑब्वियसली कुछ एक्सेप्शन है, एसीजेड वगैरह हम आगे बात करेंगे, लेकिन अगर आप एक्सेप्शन में कवर नहीं हो तो आपको इनवॉइसिंग एप्लीकेबल अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर समझो 20 करोड़ ही है तो आपको इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है क्या? कैन एनीबॉडी टेल मी वेदर इट इज एप्लीकेबल? आंसर इज नो, बराबर है। लेकिन प्लीज नोट करिएगा, मैं कहूंगा एज ए प्रोफेशनल कि भले आपको 20 करोड़ का टर्नओवर है, परचेस साइड पे इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है, सेल साइड पे आपको इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है, सॉरी, लेकिन परचेस साइड पे आपको इंश्योर करना पड़ेगा। क्या इंश्योर करना पड़ेगा? परचेस साइड पे आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि भैया जो भी मैं परचेस कर रहा हूँ, जब भी मैं परचेस कर रहा हूँ, अगर मेरे वेंडर को ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो उसने मुझे ई इनवॉइसिंग देना ही चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसने ई इनवॉइस की जगह नॉर्मल इनवॉइस दिया तो मेरा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो मुझे नहीं मिलेगा। दैट इज व्हाट इज स्पेसिफिकली मेंशन अंडर रूल 48 जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जैसा गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 3 फेजेस में तो ई इनवॉइसिंग अभी इंप्लीमेंट कर दिया, लेकिन नेचुरली ये 3 फेजेस यानी एंड नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ शुरुआत है, बराबर है। बिकॉज अभी नेक्स्ट फेजेस आएंगे। नेक्स्ट फेजेस क्या आएगा? 1 जुलाई 2021 में शायद नेक्स्ट फेज आ सकता है, जहां पर गवर्नमेंट बोलेगा अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ के ऊपर है तो इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। हो सकता है गवर्नमेंट बोला अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के भी ऊपर है तो इनवॉइसिंग एप्लीकेबल, यू नेवर नो, बराबर है। यू नीड टू नाउ कीप अ ट्रैक कि भैया अगर आपका टर्नओवर राइट नाउ यू आर नॉट क्रॉस द थ्रेशोल्ड, बट हो सकता है इन अगले कुछ दिनों में आपको इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाए। प्लीज नोट करिएगा, हम बहुत बार ड्यू डेट की बात करते हैं, जैसा हमने बात किया कि 1 अप्रैल 2021 से इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हुआ है अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है तो, लेकिन ये एंड डेट नहीं है, ड्यू डेट नहीं है। ड्यू डेट में क्या हो जाता है? काम खत्म हो जाता है। ये स्टार्ट डेट है। अगर आपका 50 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है तो इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो गया। 1 अप्रैल के बाद जितने भी इनवॉइसेस आप बनाने वाले हो, क्रेडिट नोट बनाने वाले हो, डेबिट नोट बनाने वाले हो, सभी को इनवॉइसिंग आपको करना है, बराबर है। यानी कि गवर्नमेंट को पहले बताओ, उसके बाद आप जनरेट करो। फर्स्ट टू गवर्नमेंट देन टू कस्टमर, दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग, एंड दैट विल बी एप्लीकेबल नाउ टिल इटर्निटी। इफेक्टिवली आर व्यू एज अ प्रोफेशनल इज दैट पहले फिजिकल इंस्पेक्टर थे, नाउ इट इज डिजिटल इंस्पेक्टर, बराबर है।
तो इट इज इफेक्टिवली इंस्पेक्टर कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। एंड राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली ई इनवॉइसिंग। कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट ई पेमेंट भी लाएगा। आप सबको पता है ब्लॉकचेन, बिटकॉइन वगैरह सब क्रिप्टो करेंसी वगैरह दे वर्क ऑन द कंसेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन, नो? तो सिमिलरली गवर्नमेंट वैसा ही कोई ई पेमेंट मैकेनिज्म ला लेगा। राइट नाउ ऑल्सो आप सब लोग पेटीएम रहेगा, गूगल पे रहेगा, भीम ऐप रहेगा, उससे आप ई पेमेंट ही कर रहे हो ना। तो गवर्नमेंट बोलेगा कंपल्सरीली ई पेमेंट करना है। ये भी आ सकता है अगले वाले कुछ दिनों में। एग्रीमेंट जो आप करते हो, गवर्नमेंट बोलेगा सब एग्रीमेंट ई एग्रीमेंट ही हो गया। अगर ई एग्रीमेंट नहीं है तो वैलिड ही नहीं है, जैसा ई इनवॉइस को कर दिया है। तो ये तो शुरुआत है ई इनवॉइसिंग। आगे ई पेमेंट आ सकते हैं, ई एग्रीमेंट आ सकते हैं, काफी सारे नए डेवलपमेंट आ सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इफेक्टिवली हमारा एज अ रोल जो है प्रोफेशनल, वो चेंज हो जाएगा। वो नहीं रहेगा जो पहले था 10-20 साल। बिकॉज पहले हम क्या करते थे, रिकॉर्ड मेंटेन करते थे वगैरह। अभी कुछ नहीं, गवर्नमेंट बोलेगा आपको कुछ किसी को रिकॉर्ड मेंटेन करना नहीं है। इनवॉइस का जो डेटा है, जैसे ही आपने सप्लाई किया गवर्नमेंट को, पहले बताओ। आपके वेंडर ने आपको माल भेजा, पहले वो गवर्नमेंट को बताएगा, बाद में आपको माल देगा। बराबर है। सिमिलरली पेमेंट, गवर्नमेंट बोलेगा पहले हमको बताओ, बाद में पेमेंट करो। एग्रीमेंट, दोनों के बीच का एग्रीमेंट पहले हमको बताओ, बाद में एग्रीमेंट करो। एज सिंपल एज दैट। तो इफेक्टिवली जो रिकॉर्ड वगैरह है, गवर्नमेंट बोलेगा सब हमारे पास ही मेंटेन, हम मेंटेन करेंगे अभी आपका रिकॉर्ड, और हम आपको बताएंगे आपने कितना टैक्स पे करना है, आप क्यों इतना मेहनत करते हो। और ये काफी सारे कंट्रीज में ऑलरेडी है। देयर इज आई वुड से वी आर मूविंग इन अ डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। नो रिटर्न यानी नो रिटर्न टू बी फाइल्ड। तो एज अ प्रोफेशनल, एज अ यंग फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट, as a student of CA course, you need to keep these eventualities in mind and plan your career accordingly. बराबर है। आप आपका करियर प्लान करते हो, पीछे 20 साल जो हुआ उसके बारे में सोचिए, अगले 20 साल क्या होने वाले उसके बारे में सोचिए, एंड अकॉर्डिंगली चूज योर करियर वाइजली। जब हम बात करते हैं इनवॉइसिंग की, नेचुरली काफी सारे सेक्शंस, रूल्स, नोटिफिकेशन एंड इवन ई पोर्टल जो गवर्नमेंट का है, वो भी आपको समझना जरूरी है। तो लेट अस क्विकली फर्स्ट अंडरस्टैंड कौन कौन से सेक्शन है, कौन से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इनवॉइस। आपको पता है सेक्शन 31 टॉक्स अबाउट इनवॉइस। यहाँ पर स्पेसिफिकली प्रोविजन में बोला गया है अभी कि भैया जब आप इनवॉइस देने वाले हो ना, आपको प्रिस्क्राइब मैनर में देना पड़ेगा। बराबर है। वो प्रिस्क्राइब मैनर कहाँ पर है, वो लिखा गया है रूल 48 सब क्लॉज 4 में। रूल 48 सब क्लॉज 4 क्या बोलता है कि जब भी जो भी नोटिफाइड पर्सन है, जैसा राइट नाउ नोटिफाइड पर्सन कौन है, जिसका 50 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है, तो वो क्या करेगा, ये फॉर्म जीएसटी इनवॉइस 01 है, उसमें डेटा कंपाइल करेगा, गवर्नमेंट के पोर्टल पे देगा। गवर्नमेंट आपको आईआरएन नंबर, इनवॉइस रेफरेंस नंबर देगा। बराबर है। ये इनवॉइस रेफरेंस नंबर अलग है और आपका टैक्स इनवॉइस नंबर अलग है। ये इनवॉइस रेफरेंस नंबर 64 डिजिट का होता है, वो गवर्नमेंट आपको देगा। प्लस एक क्यूआर कोड भी देगा, बाय वन गेट वन फ्री के जैसा। आईआरएन नंबर के साथ क्यूआर कोड भी आपको फ्री में मिल जाएगा। आपको आपके टैक्स इनवॉइस पे ये क्यूआर कोड प्रिंट करना है और उसके बाद ही वो इनवॉइस आपको कस्टमर को देना है। एंड प्लीज नोट करिएगा, ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल फॉर B2B केसेस, नॉट B2C केसेस येट। एडिशनली 48 सब क्लॉज 5 कहता है कि भैया अगर आपको इनवॉइसिंग मैंडेटरी था और अगर आपने इनवॉइस की जगह नॉर्मल इनवॉइस दे दिया, आपने बोला यार मैं नॉर्मल इनवॉइस देगा, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं समझता इनवॉइस क्या है क्या नहीं है, तो ऐसे केस में आपने नॉर्मल इनवॉइस दिया, आप बोलोगे जब आएगा तब देखेंगे, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, आपका रिसिपिएंट जो बायर है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, बिकॉज द डॉक्यूमेंट विच यू आर शेयरिंग विल नॉट बी ट्रीटेड एज इनवॉइस। एंड दैट्स द रीजन फ्रेंड, एज अ रिसिपिएंट, एज अ बायर, आप सबने ध्यान देना चाहिए कि भैया जो आपको डॉक्यूमेंट मिल रहा है वो प्रॉपर है क्या नहीं। अगर आपके वेंडर ने ई इनवॉइस देना चाहिए था तो उसने ई इनवॉइस ही देना चाहिए, अदरवाइज आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट चला जाएगा। बहुत क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। प्लीज नोट करिएगा, ई इनवॉइस में गवर्नमेंट ने कुछ एग्जाम्पशन दिए है, बोला एसईजेड यूनिट है यू डोंट इशू ई इनवॉइस, लेकिन एसईजेड डेवलपर को एप्लीकेबल है। आप इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, तो आप ई इनवॉइस देने की जरूरत नहीं। क्यों? बिकॉज बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल, एनबीएफसी का इनकम होता है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के ऊपर तो टैक्स नहीं है, तो गवर्नमेंट ने बोला अपनी इनवॉइस देने की जरूरत नहीं है। जीटीए ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर में रिवेज चार्ज है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में B2C ट्रांजेक्शन होते हैं, मल्टीप्लेक्स B2C ट्रांजेक्शन होते हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को बोला है कि बेसिकली आपको क्या करना है, आपने ई इनवॉइस अभी नहीं देना है, हम बाद में आपको बताएंगे। बराबर, उनको एग्जाम कर दिया है। अभी जैसे हमने बोला कि भैया ई इनवॉइसिंग जो एप्लीकेबल है वो किसको एप्लीकेबल है, 50 करोड़ के ऊपर अगर आपका टर्नओवर तो एप्लीकेबल है। तो क्वेश्चन आएगा कि भैया मुझे कैसे पता चलेगा मेरा वेंडर का टर्नओवर 50 करोड़ है क्या नहीं, मेरा खुद का पता होता है, दूसरों को कैसे पता चलेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया रिसेंटली,
उन्होंने, अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हो तो आप गवर्नमेंट पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हो कि भैया सामने वाले का टर्नओवर कितना है। तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे डाल दिया है, बराबर है। लेकिन एडिशनली ये भी कहूंगा कि जितने भी लोग रजिस्टर्ड है ई इनवॉइसिंग के लिए, उनका आज राजेश हैज राइटली पॉइंटेड आउट, एनआईसी पोर्टल पे एक लिस्ट है, और वो लिस्ट का मैं आपको थोड़ा लिंक भी देता हूँ थोड़ी देर में, अगले कुछ कपल ऑफ स्लाइड्स में, कि जिनको गवर्नमेंट ने एनेबल किया है। तो ये स्लाइड में आपको दिख रहा है ना ई इनवॉइस 1 करके जो लिस्ट दिख रहा है ना, तो जितने भी टैक्स पेयर है जो ई इनवॉइस रेज कर रहे हैं ना, तो उनका लिस्ट गवर्नमेंट ने यहाँ पर दिया है ऑलरेडी। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं कि आपका टर्नओवर 60 करोड़ है और आप इनवॉइस के लिए रजिस्टर्ड हो। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, कुछ लोग हो सकते हैं जिनका 60 करोड़ टर्नओवर है लेकिन वो रजिस्टर नहीं है। तो ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत बड़ा मुश्किल का काम है, लेकिन गवर्नमेंट ने प्रैक्टिकली आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है। गलत है ऑब्वियसली, अगर आपका क्रेडिट डिनाय होगा तो फाइट आउट किया जा सकता है। फाइट आउट क्या किया जा सकता है, भैया किसी और का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने गलती किया तो मुझे क्यों डिनाई कर रहे हो क्रेडिट। फाइट कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली है फाइट मत करो, गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके चेक करो, जीएसटी पोर्टल पे जाके चेक करो सामने वाले का टर्नओवर क्या है। अभी हम खुद की बात करते हैं। जब हम खुद की बात करते हैं कि भैया 50 करोड़ का टर्नओवर है क्या नहीं, तो ये टर्नओवर में क्या क्या ऐड करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने डेफिनेशन दिया एग्रीगेट टर्नओवर का। तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है, टैक्सेबल टर्नओवर तो आता ही है, प्लस एग्जाम्प्टेड सप्लाई का भी टर्नओवर आता है, एक्सपोर्ट भी आता है, बराबर है। एडिशनली एंड फाइनली इंटर स्टेट सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, यानी महाराष्ट्र में आपका रजिस्ट्रेशन है, गुजरात में अलग रजिस्ट्रेशन है, तो दोनों के बीच का जो टर्नओवर है वो भी आपको ऐड करना है, बराबर है। उसके बाद आपने डिसाइड करना है मेरा टर्नओवर थ्रेशोल्ड के ऊपर है कि नहीं और ई इनवॉइसिंग मुझे एप्लीकेबल है क्या नहीं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरा टैक्सेबल टर्नओवर है 20 करोड़, मेरा एग्जाम टर्नओवर है 20 करोड़, और मेरा एक्सपोर्ट है 20 करोड़, तो मुझे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है क्या। टोटल कितना हो गया मेरा 60, लेकिन मैं एग्जाम अगर माइनस कर दूंगा तो 40 करोड़ ही टर्नओवर है। तो पता ही है मुझे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है क्या, और कौन से डेट से एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। सुपर परफेक्ट। अगर मेरा टैक्सेबल टर्न, अनदर एग्जांपल, टैक्सेबल टर्नओवर है 40 करोड़ मेरा, एंड सप्लाई टू डिस्टिंक्ट पर्सन, मैंने मेरे ब्रांचेस को 20 करोड़ का माल सप्लाई किया, कितना 20 करोड़ का, तो 40 और 20 कितना हुआ 60 करोड़। तो मुझे बताइए मैं ई इनवॉइसिंग के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, ई इनवॉइसिंग मुझे एनेबल करना पड़ेगा क्या। आंसर इज यस, ऑल ऑफ यू आर राइट, यू आर एक्सपेक्टेड टू, बिकॉज वो भी टर्नओवर आपने कंसिडर करना है। अभी टर्नओवर कौन से साल का लेना है, 2020-21 का लो, बराबर है, 18-19 का लो, कौन सा लो। जीएसटी तो बीच में आया था 2017 में 1 जुलाई को, वो टर्नओवर लू क्या नहीं, 9 महीने का लू क्या साल भर का लू। तो गवर्नमेंट ने बोला है फाइनेंशियल ईयर 17-18 यानी 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21, ये 4 साल में कोई भी साल में अगर आपका 50 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो आपको इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। तो 4 साल का टर्नओवर आपको चेक करना है, 1 साल का नहीं। परफेक्ट, बराबर है। तो आपका ई इनवॉइसिंग एनेबल्ड है क्या नहीं, इसके लिए आप गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके खुद का चेक कर सकते हो कि बिकॉज गवर्नमेंट के पास भी डेटा है ना, आप जीएसटी के रिटर्न भरते हो तो गवर्नमेंट को पता है कि आपका टर्नओवर क्या है। तो गवर्नमेंट ने खुद, जिनका टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर है, उनका गवर्नमेंट ने प्रैक्टिकली ऑलरेडी इनेबल कर चुके हैं, गवर्नमेंट ने खुद ही इनेबल कर चुके हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोल रहा है आप अगर इनेबल्ड हो तो जाके चेक कर सकते हो यहाँ पर हमने इनेबल किया है क्या नहीं, बराबर है। एडिशनली आपका जो जितने भी लोग अब तक हमने इनेबल किया है उनका लिस्ट गवर्नमेंट ने ई इनवॉइसिंग पोर्टल पे दिया है। लेकिन फ्रेंड्स ये भी नोट करिएगा, जिसका ई इनवॉइसिंग पोर्टल पे इनेबल हो चुका है उसको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल ऐसा नहीं है। हमारे कुछ क्लाइंट्स में हमने देखा है जिनका 30 करोड़ टर्नओवर है उसका भी ई इनवॉइस इनेबल हो चुका है। तो वैसे केस में गवर्नमेंट को आप एक ईमेल लिखिए कि ऐसा लगता है कि गलती से आपने ई इनवॉइसिंग हमको इनेबल किया है, बराबर है, तो हमारा ई इनेबलमेंट डिस्कनेक्ट कर दीजिए बिकॉज हमको वो एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट, पहले आप 4 साल का टर्नओवर चेक कर लीजिए, ठीक है। एक बार आपको इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो गया तो इमीडिएटली जितने भी आपकी इनवॉइसिंग है, इनवॉइसेस है, सबको आपको इनवॉइसेस करना है। ऐसा नहीं कि 50 करोड़ के ऊपर वाले टर्नओवर को करना है, नहीं। एक बार इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है 2021, 1 अप्रैल 2021 में पिछला साल का टर्नओवर देख लेने का, मेरा टर्नओवर था 60 करोड़, एप्लीकेबल है तो 1 अप्रैल 2021 से जितने भी मेरे इनवॉइसेस है सभी ई इनवॉइसेस, जितने भी मेरे डेबिट नोट है सभी ई डेबिट नोट, जितने भी मेरे ई क्रेडिट नोट है सभी ई क्रेडिट नोट। अब ये मैंने क्यों बताया आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का, बिकॉज बहुत बार कंफ्यूजन क्या होता है, भैया इसका नाम है ई इनवॉइसिंग तो सिर्फ इनवॉइसेस के लिए है, नहीं, ये इवन डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के लिए भी एप्लीकेबल है।
यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें है ई इनवॉइसिंग के बारे में, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल ओनली फॉर B2B सप्लाई. इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर B2C सप्लाईज राइट नाउ, बिकॉज B2C सप्लाईज के लिए गवर्नमेंट ने एक अलग कंसेप्ट निकाला है, डायनामिक QR कोड, जो अगले कुछ कपल ऑफ मंथ्स में एप्लीकेबल हो जाएगा. बराबर है, 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हो जाएगा, बट दैट इज सेपरेट. डायनामिक QR कोड इज सेपरेट, इट इज नॉट ई इनवॉइसिंग. बराबर है, तो B2B सप्लाई के लिए ही ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, B2C के लिए नहीं. एक्सपोर्ट के लिए भी ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है. बराबर है, यहाँ पर नोट करिएगा ई इनवॉइसिंग किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है. अगर आप एग्जम्प्टेड गुड सप्लाई कर रहे हो, एग्जम्प्टेड सर्विस दे रहे हो, तो वहां बिल ऑफ सप्लाई आपको देना पड़ता है, तो ई इनवॉइसिंग वाज इशू करने की जरूरत नहीं है. इंपोर्ट के केस में ई इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं, बिकॉज वहां बिल ऑफ एंट्री फाइल होता है. परफेक्ट. तो इस तरह से ये था आपका ई इनवॉइसिंग का डिटेल एस्पेक्ट जो हमने डिस्कशन किया अभी लीगल एस्पेक्ट का. अभी प्रोसेस समझते हैं इनवॉइसिंग का पहले क्या था और अभी क्या है. अगर इनवॉइसिंग आपको एप्लीकेबल नहीं है तो आप ये 9 स्टेप्स करोगे. बराबर है, आप एग्रीमेंट साइन करोगे कस्टमर के साथ. बराबर है, आप उसके बाद इनवॉइस बनाओगे, उसके बाद ई वे बिल बनाओगे अगर आप गुड सप्लाई करते हो, उसके बाद ESTR1 बनाते हो, 3B बनाते हो, पैसा लेते हो कस्टमर से, एनुअल रिटर्न आपका फाइल करते हो. अगर आपको एनुअल ऑडिट GST ऑडिट एप्लीकेबल है, पहले एप्लीकेबल था तो वो करते हो. और फाइनल डिपार्टमेंटल ऑफिसर जब आपके पास आता है तो उसके पास आप सबमिट करते हो आपका ऑडिट का डेटा. ये प्रोसेस कब फाइल करते हो, ये कब फॉलो करते हो, जब ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है तब. अगर आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाता है तो कौन सा प्रोसेस आप फॉलो करोगे, आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे. यहाँ पर 3 चीजें, यानी 9 की जगह 12 स्टेप्स हो गए, तो यहाँ पर 3 स्टेप्स ऐड हो गए. आपको जेसन फाइल क्रिएट करना है. बराबर है, जेसन बॉर्न आइडेंटिटी आपको याद रहेगा. बराबर है, जेसन फाइल आपको क्रिएट करना है. उसके बाद ये फाइल आपको गवर्नमेंट पोर्टल पे अपलोड करनी है. गवर्नमेंट आपको QR कोड और IRN नंबर देगा, वो आपको आपके इनवॉइस पे मेंशन करना है एंड वही इनवॉइस आपके कस्टमर को देना है. तो ये 3 नए स्टेप्स ऐड हो जाएंगे, बाकी कुछ नहीं है. यानी कि गवर्नमेंट के पोर्टल पे आपको इनवॉइस का डेटा सबमिट करना है. गवर्नमेंट ने उसके लिए टूल्स भी दिए हैं. टूल्स बल्क IRN जनरेशन टूल है. बराबर है, गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके भी आप उसका कर सकते हैं, या प्राइवेट टूल्स भी अवेलेबल है, कोई प्लेयर्स के आप उसके भी प्लेयर्स के प्राइवेट टूल्स भी यूज कर सकते हो फॉर क्रिएटिंग द जेसन फाइल. So this is the process. So friends, with this we are now through with our session on e-invoicing also. Now if there is any question, बराबर है, आज के सेशन के related, then we can take up those questions also. Perfect. तो कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिकली, हम वो क्वेश्चन ले सकते हैं. प्रीतम, यस, बताइए सर. one of the case I heard from my friend, what क्या हुआ उनके केस में, पिछले 3 साल में 18-19 18-19 में उनका टर्नओवर अबव 50 लाख था. 50 करोड़ था 18-19 में. और उन्होंने जब ई इनवॉइसिंग चेक किया तो उन्होंने सिर्फ 1920 का और 2021 का चेक किया, जो कि बिलो 50 करोड़ से. ये 2 साल में उनके बिकॉज ऑफ कोरोना एंड ऑल इश्यूज द टर्नओवर इज बिलो 50 करोड़. और उनको ट्रैक ही नहीं हुआ है कि उनका टर्नओवर भी अबव 50 करोड़ था 18-19 में. अच्छा. और उन्होंने अप्रैल महीने में चालू ही नहीं किया ई इनवॉइसिंग. ओके. तो व्हाट इज द मेजर टू करेक्ट द मिस्टेक? अभी तो प्रैक्टिकली एरर या लैप्स तो हो चुका है. मुझे लगता है पोस्ट मॉर्टम यानी कि एक्टिविटी के बाद ही आपको कुछ करना पड़ेगा. वो सोल्यूशन यही है कि अभी आप इनवॉइसिंग का ले लो, इमीडिएटली इनेबल कर लो खुद को, एंड जो भी लास्ट मंथ की इनवॉइसेस है वो सब ट्राई करो. वेबसाइट एक्सेप्ट करता है कि देखो, आई डोंट नो राइट नाउ एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, लेकिन ई इनवॉइस जनरेट करने का ट्राई करो लास्ट मंथ के इमीडिएटली, और वो रिकॉर्ड मेंटेन करो. फिर अगर इनवॉइस जनरेट हो गए तो रखो, अगर नहीं हो रहे हैं तो एक ईमेल लिख दो गवर्नमेंट अथॉरिटीज को कि डिले हुआ है करके, बिकॉज प्रोसीजर लैप्स है. हमारा ये मानना है कि रूल 48 जो है प्रोसीजर डिजाइन कर रहा है एक, एंड प्रोसीजर इज टू इंश्योर भैया कि कोई फ्रॉड ना हो, कोई टैक्स नॉन पेमेंट ना हो. अगर आपने प्रोसीजर बराबर फाइल किया, बाद में अगर आपने गवर्नमेंट को इंटीमेट कर दिया है, पुराने IRN और QR कोड जनरेट कर दिए हैं, तो मुझे लगता है सिर्फ प्रोसेस लैप्स जो हुआ है उसके लिए हो सकता है जनरल पेनल्टी लेगा 10-20-25 हजार रुपए, दैट्स इट. उसके ऊपर नहीं लगना चाहिए. क्या हमारा भी हुआ है, अथॉरिटीज नहीं मानेगा, लेकिन मुझे लगता है दिस इज द बेटर सोल्यूशन. इमीडिएटली इनेबल करो,
पुराने ई इनवॉइसेस जनरेट करो, बराबर है, एंड गवर्नमेंट का अथॉरिटीज को इंटीमेट करो। What I अगर have इंटीमेट नहीं suggested, करना है तो भी चलेगा। हाँ what I have suggested him कि हाँ you issued all credit notes as on date for the earlier months invoices and issue fresh invoice e-invoices, fresh e-invoices. नहीं, वो उसको ITC GSTR 1 वो 3B 2B सब मिसमैच आ जाएगा। नहीं, उनका जो लास्ट मंथ का जो भी, सपोज आई एम द बायर, मैंने बाय किया है तो मैंने क्रेडिट लिया है अप्रैल में, राइट? हाँ और करेक्ट। उन्होंने क्रेडिट नोट के अगेंस्ट मैंने जो क्रेडिट लिया है अप्रैल में, उसके अगेंस्ट मई महीने में मुझे क्रेडिट नोट इशू कर दिया और ई इनवॉइस इशू किया है। तो मैं रेकमेंड करूं, नहीं मत करो क्रेडिट नोट वगैरह कुछ इशू मत करो। जो पुराने इनवॉइसेस है आपने सिर्फ गवर्नमेंट को बताया नहीं ना, दैट्स इट, बाकी कोई क्राइम नहीं किया आपने, टैक्स बराबर पे किया, एवरीथिंग यू डन, बराबर है। तो मुझे लग रहा है प्रोसीजरल लैप्स हुआ है, IRN और QR कोड जनरेट नहीं हुए थे, तो उतना जनरेट करके वो डॉक्यूमेंट या इनवॉइसेस जो है QR कोड वाले वो कस्टमर को भेज दो, फुल स्टॉप। बाकी मैं रेकमेंड करूंगा कि क्रेडिट नोट वगैरह मत करो, वो 2B 2A वगैरह सब मिसमैचेस, काफी चैलेंजेस आ जाएंगे। Okay. That is my recommendation. That will Just be preferable. that's why we are discussing. Because we are not, see, we have to tell our client also, यार कोई crime नहीं किया, tax बराबर पे किया ना, it is not a criminal lapse, it is just कि भैया intimate नहीं किया, that's it, बाकी कुछ नहीं है ना। तो मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्रेडिट नोट वगैरह मत नहीं करना चाहिए। दैट इज माय व्यू एटलीस्ट। ऑब्वियसली अगर आपको लग रहा है करना ही चाहिए तो दैट इज आई विल रेकमेंड नहीं। Absolutely, that's why we are discussing. करेक्ट, एकदम बराबर है राजेश। Since there is no practical solution to the issue, we have to take one stand and close it. Yes, करेक्ट, एकदम बराबर है, एकदम बराबर है। करेक्ट। क्या हमको really we have enjoyed today's session, right? Yes. It is very different, which no one have gone through till date. Accounts and records with and again e-invoicing. What types of queries demands likely to come in future from department on the basis of invoices information database? What types of analysis department can do? अच्छा दे नाउ, तो यानी कि मैं कह रहा हूँ ना, अभी तो पल्स ऑफ बिजनेस आपका कैप्चर कर लिया, अभी क्या क्या डेटा कैप्चर करे आप देखो। बहुत बार लोग क्या करते थे, मंथ एंड में डिसाइड कर रहे थे कितना टैक्स पे करना है। गवर्नमेंट बोल रहा है कि ये सब अभी आपको एडजस्टमेंट वगैरह करने का टाइम ही नहीं देंगे हम। क्यों? बिकॉज आपके वेंडर ने, आपका जो सप्लायर है, समझो उसका 80 करोड़ का टर्नओवर है, उसने आपको सप्लाई कर दिया, तो वो बताएगा कि प्रीतम मौर्य को उसने 10 मोटर्स बेचे हैं। तो अगर मैं कहूंगा कि मैंने, उस वेंडर ने मुझे कौन से डेट को बेचे, 10 अप्रैल को, तो एज ए प्रीतम मौर्य में ये नहीं कह पाऊंगा कि 5 अप्रैल को मैंने वो बेच दिए थे। यानी फेक इनवॉइसिंग कुछ करना है, कोई डेट एडजस्टमेंट करना है, पॉसिबल ही नहीं होगा। तो मेरा परचेस और सेल अप्रोप्रिएटली गवर्नमेंट को पता चल जाएगा डेट वाइज। तो गवर्नमेंट के पास जो ये डेटा आएगा इनवॉइसिंग का, इसमें इतना अमेजिंग इनसाइट गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होगा रियल टाइम बेसिस पे। तो कुछ भी जो जुगाड़ू जो लोग थे ये सब करते, तो कुछ पॉसिबल नहीं होगा। HSN वाला डेटा, कितने सारे लोग थे फेक इनवॉइसिंग में, स्टील परचेस किया, स्टील दिखाया, स्टील स्क्रैप लिया, स्टील बेचा, ये कुछ नहीं। बिकॉज सेल क्या हो रहा है, एक अभी इनवॉइसिंग में एक गवर्नमेंट का अथॉरिटीज हमको बता रहा था, परचेस किया है स्टील स्क्रैप, बेचा है कौन सा, कॉपर का स्क्रैप। बिकॉज वो पहले से कॉपर बिजनेस में था, लेकिन चेक किया है नहीं कि परचेस का बिल कौन से किससे आया है, उसने क्या HSN डाला है। तो ऐसे इजीली गवर्नमेंट को पकड़ में आ जाएगा, परचेस क्या कर रहे हो, सेल क्या कर रहे हो, डेटा, डेट, वैल्यू, प्राइस, क्वांटिटी सब आपको अपलोड करना है गवर्नमेंट पोर्टल पे इनवॉइस के वक्त, बराबर है। तो ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है लोगों को अभी जो फेक इनवॉइसिंग करते हैं या इनवॉइसिंग डिक्लेयर नहीं करते, नॉन पेमेंट करते, लिटरली इम्पॉसिबल होने वाला है। बिकॉज गवर्नमेंट का काफी सारा इंसाइट अभी जाएगा। अभी तो कहते हैं ना, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो जस्ट शुरुआत है ये तो। करेक्ट। एज प्रद्युम्न मैसेज ना, प्रद्युम्न क्या वो CID वाला, समझ रहे हो दया, समझ रहे हो, तो वैसी वाली बात है। तो समझ लो, समझदार को इशारा काफी है। Perfect. Yes, Rajesh, go ahead. Anything? I think considering the feedback, I really appreciate Pritam. The session was very wonderful. Thanks a lot for your time and all efforts. In your busy schedule, you are arranging
these sessions. Tomorrow also we are meeting again. हाँ, मैं बोलना भूल गया, मैं वही बोलना था, स्पेशल पेनल्टी राजेश पे लगना चाहिए। 20 तारीख को जीएसटी का सेशन रखा है, इधर मेरे बच्चे ऑफिस के सब बच्चे क्लाइंट कॉल कर रहे हैं सुबह से। मैं बोला राजेश के ऊपर स्पेशल पेनल्टी लगा। Please, your penalty is welcome. Because it is definitely lesser than the GST penalties. हाँ, certainly. तो 20 तारीख को था, क्योंकि ये कंटिन्यूशन में हो गया सर। और डेफिनेटली you have given your valuable time for all our participants. Thank you very much. Thank you very much, and thanks all participants for your active role and enjoying these sessions. We will see you all tomorrow. We are ending this session here only. Yes, thank you. Thanks. Friends. Yes, thanks. Bye.